Welcome, everyone. I hope I'm audible to all of you. So let's begin the fun. I can see the energy. Amazing. Perfect. So let's understand what we did last time. So, anybody who can summarize in one sentence. Some people think it is difficult to summarize in one sentence, isn't it? But yeah, you can take three sentences in that case. Evolution of a data center. Right. So when you say evolution of a data center, how data center evolved and फायदा क्या evolved का कुछ benefit, any benefit that we get. So ultimately it starts from downtime window, zero downtime, high availability, 11.9 durability, and then it goes to multi-cloud. So shortcut में अगर मुझको बोलना है, so you understood how downtime, zero downtime, high availability, 11.9 durability, and multi-cloud came into existence. So currently, the world is going towards multi-cloud environment. So the moment I say environment, what comes to your mind? Infrastructure as a service, software as a service, platform as a service, fully managed, partially managed, and manually managed. So you can manage fully, like say, for example, if I take software as a service, it is fully managed. So there are two questions which needs to be understood. Suppose I'm running a project. Okay, so I don't know, I don't remember, but let's understand. I want to start my project for which I will have an applications architect. Okay, then who's the second guy? First, I need an applications architect. Then who's the second guy? I need to hire. I need to hire a scrum master. Then who is the third guy? The third guy is UI developer. Then who is the fourth guy? 1, 2, 3. Senior developer. Okay. And the fourth guy is a junior developer. Usually you get from college, university. After doing some papad bailing, that person becomes senior developer. Okay, then the person may decide कि यार मेरे को बहुत hectic लग रहा है, मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को ये अच्छा लगता है, he can go anywhere, or that person will stick to where it is. So most people they think कि इसमें कौन ज्यादा पैसे कमाता है, isn't it? So of course you know that these people earn very less junior developer के title की वजह से. Otherwise these three people they earn quite similar. The problem is to create one app we need a team. This is the team we are talking about. तो अभी मेरे पास suppose app ready है. I have an app ready. Okay, नाम क्या है? Say for an example, WhatsApp, तुम्हारा favorite app, जिंदगी की वाट लगाने वाला application, WhatsApp. ऐसा क्यों? ओ ऐसा इसलिए कि तुम इससे पैसे कमाते हो क्या? नहीं. तो अपना टाइम गंवाते हो? यस. तो जब टाइम गंवाते हो तो उसका मतलब टाइम इक्वल्स मनी. अच्छा, is it good for me? Yes, I earn money from this application. This is a productive application for me. And there are so many other people, those who earn money from WhatsApp. So that's the reason I'm taking an example for you. अब मुझको इसको क्या करना है? Host करना है, host. Hosting. So you will say to host this application, you need an architect. Once again, this architect can be a bare metal architect, a hardware architect, what you call it, a cloud architect, a solutions architect.
So इतने सारे कहाँ से आ गए? That's a good question. So if I say hardware architect, that means some company like Dell, IBM will require them. HP, Fujitsu, and they will require them, hardware architect. Some companies, those who do not have hardware directly, they order the hardware. They just place an order for the hardware. Then what type of an architect will they require? They will need a bare metal architect. So some people, they don't have either of them. So they will need a virtualization architect, VMware architect. Then some people don't have that environment as well. They will require a cloud architect. And some people, those who are going in the cloud, to do what? To deploy what? An application. Just an application. अब उसका नाम कुछ भी हो, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है. Okay. So now the question is, see, मैं इसको जब टर्न करूंगा ना, गोल घुमाऊंगा ना, तो तुम चक्कर आ जाएंगे तुमको. Why? Because अभी तो ऐप रेडी हुआ है ना इधर. तो जब ऐप रेडी होता है तो क्या होता है? हाँ, what happens? What happens? Alpha, beta, final, release, और उसके बाद stable. यही होता है बस. हाँ, टेस्टिंग फेस्टिंग ये लोग करते हैं. जूनियर बेचारे की नसीब में टेस्टिंग. एसेंशियल देखो कैसा भरता है, फ्रेशर थोक के भाव में, है कि नहीं? ये सब जूनियर्स. बिकॉज इस सीनियर को हेल हमाली का जो काम है, हेल हमाली, सॉरी, हेल हमाली सबको नहीं समझेगा. टेली टपाली मुंबई की भाषा में, हेल हमाली, टेली टपाली. अच्छा, इंग्लिश में डर्टी वर्क, डर्टी वर्क, वो कराने के लिए इनको हायर किया जाता है. बुरा लग रहा है ना? इसीलिए तो मेरे बच्चों को भेजा नहीं मैंने स्कूल एंड कॉलेज, so that they don't have to do the dirty work of this world. And now I don't know what kind of a parents you will be. If you remember this session, you will be a good parent, hopefully. Now the question is, you have so many different kinds of architect. What makes them different? Environment. जैसा environment वैसा architect. So suppose हमको मिल गया है, एक बंदा मिल गया जो ये काम कर सकता है. ओके, वो हमको ये बता सकता है कि कौन सा प्रॉब्लम का कौन सा सॉल्यूशन है. So there will be some 5 pillars, isn't it? तो ये तो सबको पता ही होना चाहिए, अभी बाय हार्ट होना चाहिए 5 pillars. But I want to hear that once again, because some people they don't practice. They just come to watch the movie called Cloud Age, है ना? उनको लगता है 3 घंटे की पिक्चर चल रही है और उसमें बस 3 घंटा देंगे और हमारी जिंदगी में कामयाबी मिल जाएगी. Not possible. So what are those 5 pillars that architect needs to take care? Architect needs to take care of some components, isn't it? Like operational excellence, reliability, security, performance, okay, and cost optimization. Now the question is, मैंने इसको है ना जो सीक्वेंस में लिखना चाहिए था वो लिखा नहीं. क्यों? ऐसा क्यों? ताकि मैं तुम्हारे दिमाग में बात घुसाड़ सकूं कि सीक्वेंस है इसका. Ultimately,
Cost optimization is our last concern. Performance is the fourth concern. Security is number one concern. So how are you going to secure the cluster? How are you going to give the operational excellence? How will you take care of the reliability? How will you take care of the performance tuning and cost optimization? That you will come to know gradually. अभी क्या है, खाली इतना ध्यान में रखो, आर्किटेक्ट का एक काम है कि नहीं? अब उसने ये काम खत्म किया, उसको मिल गया टाइटल सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट। तो आगे जाके इसके सेशंस होने वाले, डोंट वरी, you will get that session, you will understand what it means. So we have the architect. Now what else? For hosting, तो उसने बोल दिया इस तरीके से तुमको होस्ट करना है. Then who else do you need? You need a team, but I want to listen to that team from you people. IBM की भाषा में बोलो. हाँ, amazing, amazing. क्या नाम है? पृथ्वीराज. Very nice. You need a team of DevOps, SysOps, DataOps. अब इस टीम में कितने मेंबर होंगे वो डिपेंड करता है तुम्हारे पास कितना डेटा है. What is the size of your company? And if your company is a modern company and you are going towards the augmented analytics, then you will have ML Ops. Then you also may have AI Ops. However, ये तीन तो compulsory components है. So who will take care of them? There has to be somebody who needs to take care of these people, isn't it? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है क्या? Administrator. Administrator has to take care of all of them. Data analyst, system analyst, or not system analyst, उसको भी administrator बोलते हैं, systems administrator. And in this systems, there are three systems. One is a network, firewall, and servers. तो servers लिखूं क्या मैं इधर? ठीक है, लिख लेता हूं तुम्हारी खुशी के लिए. Here also you may have to take care of multiple systems like GitOps, like वो भी लिखना पड़ेगा. अच्छा चलो ठीक है यार, तुम लोग बहुत सताने वाले बाद में, तो लिख ही देते. पाइपलाइन, इंजेक्शन, इंटीग्रेशन. Okay, integration, ingestion, pipelining, and GitOps. यहाँ पे नेटवर्क, फायरवॉल, सर्वर्स है. और ये बंदा डेटा ऑप्स, डेटा एनालिस्ट. हाँ, ये इसको एप्लीकेशंस एडमिन भी बोला जाता है. डेवऑप्स जो होता है ना, उसको ऐप का एडमिन भी बोला जाता है, एप्लीकेशंस एडमिन, या एप्लीकेशंस टीम बोला जाता है. मेनी टाइम्स दे डोंट वांट टू यूज द एडमिन बिकॉज पगार ज्यादा देनी पड़ेगी. But everything that comes into operations has administration of some kind. ये बात याद रखना है. Operations का मतलब ही वो होता है. याद है ऊपर हमने लिखा था नंबर 2 पे क्या है? Operational excellence. Okay. अब एक पॉइंट है. पॉइंट ये है कि तुमको पहले तो ये समझना पड़ेगा ना, ये सर्वर्स चलते कैसे. यस, तो हमने ये लास्ट टाइम किया था. लास्ट टाइम क्यों किया था ये सेशन? So that we understand how it goes in the industry. So some people, they already have the application. They don't need an application developer Govandi at all. They don't need them at all. In fact, they move them to some other projects. Okay. Now in our case,
It depends. It all depends. तो तुमको क्या है, पुरानी सब रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगी और अपने डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा. बिकॉज इफ यू डोंट कनेक्ट योर डॉट्स, you will not be able to understand anything. Okay. पहले क्या होता था, डेवलपर जो है ना, उसको कोड पुश करना पड़ता था मैन्युअली, बट नाउ that guy does not have to push it manually. It is done automatically. That automatically code pushing, जिसको अपडेट, पैचेस, अपग्रेड, माइग्रेशन, बहुत सारी चीजों में काम आता है, that is GitOps, part of GitOps. Okay, so shortcut में it is a shortcut में what is Git? It is a repository for code. Code मतलब code program, isn't it? So how does it look like? We'll see that. So don't worry. So yeah, it is a purely a program. So there is a difference in between a script and a program. Script होगी तो हम लोग क्या cron job से भी उसको submit कर सकते हैं. But for a program, you need Git. Getting the point? Because that is not the department we cater to. That is a different department. And companies, they want to keep it like this. So वो भी हमने discuss किया था. Why they want to keep it like that? So that everybody does not know everything. And if they know everything, they will require at least 22, 25, 30 years. And they will require to change their jobs in 36 companies. Is that possible for all? No, it is not. Most people in this world, they are a Fevicol का जोड़. एक कंपनी में मिल गया जॉब, लिया लोन, पटाई एक कॉलीग को, मम्मी पापा को बोला कोर्ट मैरिज किया, मैं आ गया घर पे, और उसके बाद एक बैंक की गुलामी, जोरू की गुलामी, कंपनी की गुलामी, और लाइफ चले जा रही है. एंजॉय. तो ज्यादातर हमने ऐसे ही देखे. दैट्स हाउ इट इज. और फिर कैलेंडर छापना शुरू कर दिया. हाँ, नामकरण. यहाँ हम लोग एप्लीकेशंस का नाम दे रहे हैं, ये लोग अपने बच्चों के नाम दे रहे हैं. दैट्स अ डिफरेंस. Is that bad? No, it is not. It is amazing for the organizations, not for you. उनके लिए अच्छा है कि तुम कहीं तो ठसे हो, कहीं तो फंसे हो, और जितना तुम फंसोगे उतना वो खुश है. वो बहुत खुश है इससे. They are very happy because they want people like that. They want it. So some people, they go out of the box. Like you must have heard about Robert Kiyosaki, out of the box, है ना, financial world के सारे पोल खोल दिया उसने. Similarly, there are so many people, those who come out and boldly they are ready to tell everyone that please be aware, these people are robbing you from all the sides. So take care of that. अब कुछ लोगों का दिमाग बुद्धि खुलती है और कुछ लोगों की नहीं खुलती है. वो बस अपनी पटी हुई जीन्स से बहुत खुश है. वो हुक्का मारने में बहुत खुश है. हुक्का मास्टर्स, आजकल वो नया फैशन चला है, जिसको देखो हुक्का मार रहा है. दैट्स हाउ इट इज. और उसको थियोरी क्या रहती है, बहुत सेफ है. तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसका क्या सेफ है, बड़ा है, सेफ है. घन चक्कर, एक से एक नमूने मिलते हैं ना दुनिया में. और फिर वो कामयाबी की तमन्ना, ओह माय गॉड, कभी होने वाला नहीं ऐसा, इम्पॉसिबल. मारते रहे हुक्का, एक दिन तेरी लाइफ भी धुआं होने वाली है. Okay, so what we will do is today, we will need to understand a concept. Now this concept, बोलने के लिए तो बहुत शॉर्टकट में मैं बोल सकता हूँ. Like you know, evolution को मैंने शॉर्टकट में कैसे बताया तुमको? डाउन टाइम, zero डाउन टाइम, high availability, 11/9 durability, multi cloud. तो तुम कम से कम 30 साल, 30 years मैंने कॉम्प्रोमाइज उसमें समराइज कर दिया 5 सेंटेंस में. And it's done. It's done. Now the only question is, आज का जो हमारा टॉपिक है, इसको अगर मुझको समराइज करना है, अभी टॉपिक शुरू भी नहीं हुआ और मुझको समराइज करना है, तो इंडस्ट्री ने इसको समराइज कैसे किया है? Yes, that is called resources.
compute optimized, memory optimized, storage optimized, and general purpose. Once upon a time, there was something called network optimized. As you know, memory storage को access करने के लिए हमको क्या लगता है? Network, isn't it? हम लोग कभी network access करने के लिए network use नहीं करते. तो इंडस्ट्री ने इस बात को रियलाइज किया कि नेटवर्क ऑप्टिमाइज नहीं रख सकते क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता उसका. तो उन लोगों ने क्या बनाया? स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड एंड जनरल पर्पस. तो इसका कुछ तो मीनिंग होगा, ऑफ कोर्स. तो उसको शॉर्टकट में ऐसा समझो, व्हेन विल आई यूज अ कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड मशीन. तो अभी वो न्यूज में तुमने सुना होगा, एक टेलीस्कोप है. हमारे जमाने में हबल टेलीस्कोप इन लोगों ने लॉन्च किया था. तुम्हारे जमाने में क्या लॉन्च किया इन लोगों ने? एक नया टेलीस्कोप लॉन्च किया है, जेम्स वेब. नाउ दिस पर्टिकुलर टेलीस्कोप का जो प्रोजेक्ट है नासा ने AWS को दिया हुआ है. अनबिलीवेबल, isn't it? Yes, it is. इसका मतलब ये होता है कि they are going to join 1000 images in 1 second. भेजा उबल जाओ आदमी का सोच के कि क्या बात कर, कौन से जमाने में हम लोग. Yes, you are already living in the future, but you don't know. That's the difference. 1 सेकेंड में 1000 इमेज को क्या करेगा? वो ज्वाइन करेगा, ज्वाइन, और तुमको फोटो दिखाएगा. ये देख, ऐसा दिखता है 1000 इमेजेस. तो उसको कुछ ना कुछ अर्थ पे आने के बाद प्रोसेस तो करना पड़ेगा ना. वी हैव टू प्रोसेस दैट इमेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, you need a DevOps team to get that image, where on some kind of storage, and then process it. You need a memory, fast memory to work, to get that processing done, isn't it? तो ये सारे काम के लिए हाई प्रोसेसिंग अगर लगती है तो कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड यूज किया जाता है. इसको शॉर्टकट में अगर बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे, Hadoop इमेज प्रोसेसिंग, HIP. तो अगर तुमको कोई थियसिस पढ़ना है, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है, बहुत थियरी, then you can type HIP, Hadoop image processing, and you will get some documents, isn't it? However, nowadays it is easy. अब मैंने एक एग्जांपल दिया है. अब let's talk about memory optimized. I want to deploy a program like SAP. What do you think? भाई SAP का लाइसेंस इतना महंगा है, और लाइसेंस महंगा तो है, उसके कंडीशंस, prerequisites, I will not be able to fulfill as a startup. However, any such thing can be deployed which requires huge RAM is available in the cloud environment. तो उसको क्या लगता है? Memory optimized machine. HIP को क्या लगता है? Compute optimized machine. Exactly. Now I want to process huge amount of data. So when I say huge amount of data, that actually means it is supposed to go above what? Above terabytes. It should be petabytes. Yeah, it should be in petabytes. Above terabytes. Terabytes की कोई इज्जत नहीं, petabytes. So if I have data in petabytes, yes, I can process that in a storage optimized machine. Then comes your general purpose. General purpose मतलब तुमको जो staging करना है उसके लिए मशीन चाहिए, टेस्टिंग करना है उसके लिए मशीन चाहिए, POC करना है उसके लिए मशीन चाहिए, ट्रेनिंग लेना है उसके लिए मशीन्स चाहिए. Go and take it. Or otherwise you have some web servers and you want some general purpose machines. Go for it. That's what they're trying to tell you. Now, what makes it a compute optimized? What makes it a memory optimized? What makes it a storage optimized? And what makes it a general purpose? Ayana dimag mein question? Yes. So we are going to deal with that question. Okay.
So point number one, when we are talking about a processor, CPU, isn't it? So इसकी जो कहानी शुरू हुई थी ना, जब स्टार्ट हुई थी, so it was only 8-bit, then 16-bit, and then 24-bit, which was also known as a multimedia processor. ज़्यादा चला नहीं, लेकिन आज भी कहीं कहीं यूज होता है. And then when we got this into the industry, मतलब इंडस्ट्री को जब इसने टच किया, लैब से बाहर आया, that time it was 32-bit. In the experimenting phases, these were the processors. Are they used even today? So the answer is yes. You may find this processor in your calculators. You may find this in your microwave. And you may find this 24-bit processors in some other gadgets which require little bit of multimedia features, like Raspberry Pi. Yes, you possibly. The question is, क्या difference है ये processors में और ये processor में, 32-bit में? Difference क्या है? That's a good question. इसमें ना heat sink नहीं है. Only in this processor they have heat sink. And forget about heat sink. यहाँ पे तो heat sink के साथ में इन लोगों ने पंखा भी लगाया है, fan, so that it cools down. That's what makes it a 32-bit processor. In reality, however, there are multiple other components. तो हमको क्या है ना, हार्डवेयर आर्किटेक्ट तो बनना नहीं है. हमको क्या बनना है, हमको क्या समझना है कि ये इवॉल्व कैसे हुआ, इसमें हमारे फायदे की चीज क्या है. And why do they call G1, G2, G3, G4, G5 and blah blah blah? What does that actually means? What is the general purpose? What is compute optimized? What is memory optimized? That is the main motto of understanding. उतना समझ में आ गया, बाकी सब जाने दो. बहुत कुछ है, अपना कुछ फायदा नहीं, क्योंकि तुमको इंटेल में काम तो मिलने वाला नहीं है प्रोसेसर बनाने के लिए, isn't it? So हमको हमारे मतलब की बात समझनी है, as an administrator, as an architect, as a person, who is going to take care of the system. Okay. तो अब ये समझ में आया कि 32-bit प्रोसेसर जैसे आया तो हम लोग कहाँ आ गए, हम लोग आ गए एंटरप्राइज की दुनिया में. Which means when enterprise was launched, that time we had 32-bit processors, and this was given a name, and that was G1, generation 1. तो ये जो CPU है 32-bit का, इस CPU में कितना कोर था? कोर, you know what is a core? तो उसका आंसर है, that time core did not exist. That time core did not exist. That's the reason we call that a single. अभी ये जो लैंग्वेज मैं यूज कर रहा हूँ सिंगल कोर वाली, this language, remember, is the language of 2022. उस जमाने में जब कोर ही नहीं था तो लैंग्वेज कहाँ से आई? लैंग्वेज भी नहीं. लेकिन हमको अभी ये फटाफट समझना है, इसके लिए हम थोड़ी सी चीटिंग कर रहे हैं. Otherwise, somebody who wants to say, no यार कोर नहीं बोलते तो क्या बोलते थे? That's a good question. I can answer that. Threads. क्या बोलते थे उसको? Threads. Multi-threads. अब मल्टी थ्रेड लिखते के साथ तुमने वर्ड मल्टीमीडिया सुना होगा, isn't it? 8-bit processor can do only one task, calculation. 16-bit processor can do one or two tasks. 1, 2, 3, दो से ज्यादा टास्क कर सकता है, मतलब yes it can. And 24-bit processor can do little more tasks. However, वो बहुत जल्दी फूल के फट जाता था, इसके लिए मार्केट में आया नहीं. Now गर्म होने की वजह से इन लोगों ने रियलाइज किया, गर्म होने की वजह से, so let's use a heat sink, and they started using that.
Later on, they realized fan would be much better solution. So they created a fan. And 32-bit processors, they were known as a single core, लेकिन मल्टी थ्रेड्स था, याद रखना. थ्रेड बहुत था, काम बहुत कर सकता था, मल्टीपल टास्क, यू कैन ओपन मल्टीपल प्रोग्राम्स. इन शॉर्ट, तुम्हारी भाषा में मल्टीपल प्रोग्राम्स. यस. और इसका एक लिमिटेशन था, एंड दैट लिमिटेशन वाज रैम. यू कैन नॉट गो अबव 4 GB ऑफ रैम. मतलब यू कैन, तुम चाहो तो 2 से 4 से ज्यादा रैम लगा सकते हो, लेकिन ये प्रोसेसर उसको यूज नहीं कर सकता. प्रोसेसर यूज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. इट कैन नॉट. दैट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो इन लोगों ने बोला कि लेट्स डू वन थिंग, गो फॉर अ G2. And this is again a 32-bit processor. Remember, it is again a 32-bit processor. So what is the difference? The difference is यहाँ पे ना हीट सिंक है और यहाँ पे इन लोगों ने फैन लगाया है, जिससे कि क्या हो गया, इसकी स्पीड पहले से ज्यादा बढ़ गई. जितना जल्दी ठंडा होगा उतना जल्दी काम. अब इस बात को समझने के लिए, से फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग यू कि एक बटन है, बटन जो घर में हमारा पंखा चालू करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. How many times can I turn it, turn on, turn off? So depends from person to person. Some young person can say, I can do it 200 times within 1 minute. There is one condition. See, somebody like me, I can do it 60 times in a minute, possibly. Maybe 30 times in a minute, possibly. So if I can do it 30 minutes में एक बार मैं कर सकता हूं, तो तुम बोलोगे ना कि ये 30 हर्ट्ज का प्रोसेसर है, या तुम बोलोगे ये 300 हर्ट्ज का प्रोसेसर है. Then you will say this is 300 megahertz का प्रोसेसर. Why? Because वो ऑन ऑफ करने की जो ताकत है वो कितनी है, वो उसके ऊपर डिसाइड होता है. तो say for example the person who is a young guy and that person is challenging and saying कि I am ready to do this much faster. कंडीशन क्या है? कंडीशन ये, तुमको यहाँ पे ना पंखा चालू करना पड़ेगा, कूलेंट, some kind of coolant, so that it can cool down that button, and the moment it cools down I can do it for much bigger time. इन लोगों ने इस बात को रियलाइज किया. एंड देखा जाए तो इंडस्ट्री में हम लोग इसको फ्रॉड बोलते थे. मतलब फ्रॉड मतलब चीटिंग. व्हाई? यू कुड हैव सेड दिस इज जनरेशन 1 which is improved, isn't it? Why? It does not change any cores. Does it have single core? Yes, it does. Does it have the same limitation? Yes, it does. So what is the difference? The difference is यहाँ पे 700 megahertz था और यहाँ पे वो 1 gigahertz पे चला गया था. बस यही एक्साइटमेंट था, यही खुशी थी इनकी. और इस खुशी की वजह से इन लोगों ने इसको क्या बना दिया, जनरेशन 2. लेकिन एक काम की बात ये है दोस्त, जो तुम्हारे काम की बात है, ये जो रूल है 1 gigahertz with single core and 4 GB RAM, इसको आज भी इंडस्ट्री में जनरल पर्पस बोला जाता है. क्या बोला जाता है? जनरल पर्पस. अब ये समझ में तो आया नहीं, मैं जानता हूं. डोंट वरी, रिलैक्स, वी विल डिस्कस दैट. ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड. तो अभी इतना पॉइंट समझ में आया. तो जैसे ही सिलिकॉन वैली में सिलिकॉन का इन्वेंशन हुआ, तो दीज पीपल दे स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रोसेसर्स विद सिलिकॉन. एंड तुमको पता है सिलिकॉन की प्रॉपर्टी कैसी है? आजकल तो चम्मच में भी आ गया है ना, घर के चम्मच में सिलिकॉन. क्यों? क्योंकि उसको हीट का असर जल्दी होता नहीं है ना. दैट्स द रीजन दे केम अप विद दैट मटेरियल. तो सिर्फ फायदा ये हुआ, they started claiming now we have a generation 3
CPU. In this CPU, we have two cores. What do we have? 1 plus 1 cores. And तुमको ये रूल याद रखना है. पहले पुराना रूल क्या था? सिंगल कोर के लिए कितना रैम था? 4 GB. तो यहाँ पे जो रूल के हिसाब से 8 GB होना चाहिए. अरे भाई, रूल के हिसाब से 8 GB होना चाहिए. लेकिन इन लोगों ने बोला इट सपोर्ट्स अनलिमिटेड रैम. बट टेस्टिंग करके बोला होगा ना. तो अनलिमिटेड का मतलब क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, डोंट वरी. बट फॉर नाउ तुमको जो चीज याद रखनी है वो ये है कि जैसे ही यहाँ पे मेरे पास 1 प्लस 1 कोर आया, मतलब 2 कोर आए, तो ये जो मेरा सीपीयू का जो बिट है, बिट ये चेंज हो गया और बन गया 64 बिट. So if I say G3 is 64 bit, yeah, that's what it is. Now the question, the tough question that you should be able to answer. Suppose if I say कि मेरे पास 1 गीगाहर्ट्ज के 2 प्रोसेसर है. कितने सीपीयू है? 2 सीपीयू in generation 3. We call that 64 bit, right? So the question is, will it work with 2 gigahertz or 1 gigahertz? What do you say? क्या आंसर है तुम्हारा? It will work with 1 gigahertz only. हाँ भैया, काम वो 1 gigahertz से ही करेगा. लेकिन 2 कोर होने का फायदा ये है दोस्त कि पहले जो वो काम करता था तो उसका जो एफएसबी था वो बहुत कम था. अब एफएसबी ज्यादा है. अब ये डिमांड कर रहा है तुमको बताना व्हाट इज एफएसबी, isn't it? So we will keep FSB right in the fridge. Why? इसको फ्रिज में से बाद में निकालेंगे. But right now, one component is understood, and that is where the G1, G2, G3 is coming from. So unlimited RAM को भी समझ लेते. When we say unlimited RAM, इसका मतलब है there is no limitation for RAM. In case of 64-bit processor. However, एक क्वेश्चन है, अगर मैंने 8 के ऊपर रैम लिया तो क्या होगा? सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे. What we'll do is we'll go with 16 GB of RAM, okay, in G3 for an example. So will it remain 64 bit? So the answer is yes. Why? Because core मेरे पास 1 plus 1 ही है ना. Ultimately core तो 2 ही है. Okay, so that means I have CPU, I have RAM. What does this become? Will it work? So the answer is yes, it will work. Once upon a time, it was not working in this case, but now it works. 16 GB with 2 core, yes, it works. And even after it works, we have given a name called memory optimized. Okay, मतलब ये होता है कि इसका रैम ज्यादा है. तो अभी कुछ लोग होंगे जो जज्बात में आ जाएंगे, and they will tell me कि let's change this from 16 to 32 GB. इसको बोलते हैं जज्बात, जो तुमको करना है कंट्रोल. It is not going to use it. भाई तूने लगाया तो उसने कुछ बोला नहीं, चलेगा वो, लेकिन यूज कितना करेगा? 16 GB. प्रोग्राम में भी तो दम होना चाहिए ना यूज करने के लिए. सो उसको क्या बोलते हैं हम लोग हमारी भाषा में? जो वेस्ट हो जाता, वेस्ट. सो वेस्ट ऑफ रिसोर्स, अंडर यूटिलाइज्ड.
isn't it? It is not going to be utilized. तो वो जो रिसोर्स है 16 GB लिया, लेकिन कुछ फायदे का नहीं है. वो तुम्हारे जैसा ही है. तुमने एक फोन खरीदा था 8 कोर का. पूरा कहानी समझ में आ गई ना. और यूज क्या कर रहे हैं? व्हाट्सएप. व्हाट्सएप को कितनी जरूरत थी? सिंगल कोर. और क्या था उसको जरूरत व्हाट्सएप के लिए? वह 500 MB रैम भी बस हो गया था उसको. 1 GB बहुत हो गया. 2 GB वाला भी फोन बस होता था तेरे लिए. लेकिन गांव को दिखाने का है ना, मेरे पास बहुत भारी फोन है. नहीं नहीं, आई वॉन्ट सम फ्यूचर कंपैटिबल. वो फिर बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड बोल के चुप कराता सामने वाले को. isn't it? So पब्लिक भी चुप हो जाती, बोले ठीक है भाई, as you wish, you have money, you are wasting it, it's okay. कंपनी में ऐसा नहीं चलता दोस्त. Why? Because कंपनी में एक चीज होती है, उसका नाम है ऑडिट. क्या नाम है उसका? ऑडिट. ऑडिट. देखो तुम्हारा भी ऑडिट होता है. ऑडिट तुम्हारा भी होता है. जब तुम्हारे घर में कोई रिलेटिव आता है तो वो तुम्हारी ऑडिट करके जाता है. क्या जरूरत थी इतना महंगा फोन लेने की? है ना. घर में कोई चीचा आते ना, वो बता के जाते अपने को. फालतू में पैसा वेस्ट करते तुम लोग. Exactly, that's kind of an audit. So it happens here also in the organization. They do audit. They tell us कि भैया ये तू क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा है इसको. तो वेस्ट कर रहा है तो वो रिपोर्ट बनाएगा ना. और वो रिपोर्ट कौन पढ़ता है? जो हमको फंडिंग करता है, पैसा देता, पैसा. CFO. उसको क्या समझ में आता है? खाली एक ही बात समझ में आती, वेस्ट हुआ बस. उसको ये समझता नहीं है कि ये G1 G2 क्या है, रैम किसको बोलते हैं, एप्लीकेशन कैसे चलता है. वो पप्पा के जैसा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता. उसको खाली इतना दिख गया ये वेस्ट हुआ बस. वेस्ट हुआ, चढ़ाई. दैट्स हाउ इट इज. एंड तुम्हारा इंसेंटिव गया, बिकॉज रिपोर्ट में आ गया. योर इंसेंटिव इज गॉन. नाउ यू गेटिंग द पॉइंट है ना. अभी वो जो झटका है वो लगेगा तुमको, वो समझ में आएगा कि यार डायरेक्टर लोग का दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है, वो लोग क्यों इतना बोलते हैं और पप्पा इतना क्यों चिल्लाते घर में. क्योंकि वेस्टेज इज गोइंग अगेंस्ट द बिजनेस एथिक्स. ओके, अब ये वाला पॉइंट समझ में आ गया. तो सिर्फ फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास जनरल पर्पस के लिए 8 GB था इधर, तो मैंने क्या किया, 6 GB लगाया. विल इट वर्क? तो आंसर इज यस, इट विल. लेकिन उसको बोलेंगे क्या? अंडर यूटिलाइज्ड. हमको अंडर यूटिलाइजेशन नहीं चाहिए, ओवर यूटिलाइजेशन नहीं चाहिए. हमको ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन चाहिए. इसके लिए उसको क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? ऑप्टिमाइज्ड. इजंट इट? ऑप्टिमल यूसेज. यस. अब ये वाला लॉजिक समझ में आ गया. चलो देखते कितना समझ में आया. नाउ द क्वेश्चन इज, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, so they will come up with some new processing powers, isn't it? Yes. With better heat sink. The answer is yes. So what if this becomes 2 gigahertz and you are still using 16 GB of RAM? Yeah, Rahul, very nice. This is again general purpose. 2 कोर है, 2 gigahertz है और 16 GB RAM है. But the moment I remove this 16 GB RAM and make it 8 GB, what happens? Compute optimized. Very nice, Akshay. It becomes compute optimized. अब बन गया वो compute optimized. So the moment, अब ये जनरल पर्पस का जो रूल है ना, इसको तुमको ये शायद वीडियो देखना पड़ेगा 2 से 3 बार अगर समझ में नहीं आ रहा है तो. लेकिन हम एक बार और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा. So what we'll do is we'll go away from this processor. We'll go to the next processor. That will be G4. And in G4, how many cores will I have? 1 plus 1 plus 1 plus 1. So in total, 4 cores.
and you call that a G4. Now in G4, I have 1 gigahertz. Gigahertz of what? CPU power. And the RAM. To make it a general purpose, how much RAM will I require? तो तुम्हारा कैलकुलेशन ऐसा जाना चाहिए 4 + 4 + 4 + 4. ये रैम के लिए ऊपर का जो है ये. So how much RAM will I need? 16, isn't it? So 16 GB का जो RAM है, let me write 16 GB first. This is going to make it what? ये ऊपर का है, इसको छोड़ दो. Confuse मत होना. I could have removed this so that you don't get confused. वो ऊपर वाला है ना ये. Now it's in the same screen. So you call this a general purpose. That is absolutely correct. 1 gigahertz का मेरा CPU है और कोर कितने हैं? 4 कोर है. 4 कोर के हिसाब से every core will require minimum of 4 GB of RAM. So I am giving 16 GB of RAM to make it a general purpose. Now the question is, what if this is 2 gigahertz? Now, the moment you make it is 2 gigahertz, this goes into compute optimized category. तो मैंने देखो अभी पलड़े में मैंने रैम नहीं डाला है ज्यादा. मैंने क्या डाला है? CPU का प्रोसेसिंग पावर डाला है. जैसी पावर डाला, so let's write power. Okay. So this becomes 2 gigahertz, that is compute optimized. The moment I change this to 32 GB, even 24 GB for that matter, it gets into memory optimized. क्योंकि रूल के बाहर गया ना. रूल क्या है? जनरल पर्पस इज द रूल. रूल के जरा भी ऊपर गया, मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड. ऊपर क्या रैम लेकर गया तो मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड. सीपीयू लेकर गया तो CPU optimized. Now the moment I make this 3 gigahertz, once again I make this a compute optimized. You see, so compute optimized mein I have some limitations. In memory optimization I have some limitations है हार्डवेयर का जो आर्किटेक्ट है. इसीलिए देखो जब कोई मुझको पूछता है कौन सा कंप्यूटर लूं, तो मैं उसको बोलता है यार तू चुपचाप डेल का ले ले, एकदम कंपैटिबल मिलेगा तेरे को सस्ते में. फिजित्सु, डेल. व्हाई? तुमने नोटिस किया होगा जो असेंबल करते हैं ना कंप्यूटर्स को, तो वो उनके दिमाग में एक ही बात होती है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन. उनको परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी, इसका कोई लेना देना नहीं. एक ही चीज होती है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन. सस्ता माल उठा लो. तो सस्ते के चक्कर में क्या करते हैं? दे बाय इंटेल का i7, i9 एंड रैम के अंदर वो लोग एकदम छप्पड़ 3rd ग्रेड रैम उठा लेते हैं. उसको हम लोग बोलते हैं बॉटल नेक. दैट वी विल डिस्कस लिटिल लेटर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट FSP. ओके, सो वंस द बॉटल नेक इज देयर, योर कंप्यूटर, मतलब इतना इन्वेस्ट करके कुछ फायदा नहीं हो गया. ये तो ऐसी बात हो गई कि यू हैव अ फरारी, ओके, एंड तुम फरारी लेके जा रहे हो किधर? मार्केट में, मार्केट यार्ड, नाना पेट. दैट्स हाउ इट इज. तो क्या स्पीड से जाओगे तुम? ऑटो रिक्शा की स्पीड से जाओगे. हाँ, तुम्हारे आगे रहेगी ना वो, उसकी स्पीड से जाना है तुमको. तो तुम्हारा मदरबोर्ड भी वैसा ही चाहिए. दैट्स व्हाट इट मींस. सो दैट्स द रीजन वो आर्किटेक्ट का काम होता है. आर्किटेक्ट लोग, हार्डवेयर के जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, इनको ये सब पता होता है. सो व्हाट दे डू, दे डिजाइन अ वंडरफुल मशीन फॉर यू
You just pay money for it and happy. तो अभी जो लोग समझ गए वो लैपटॉप लेके आते खुश रहते. घटिया लैपटॉप में HP का नाम है और अच्छे लैपटॉप्स में डेल का नाम है. अब तुमने अगर खरीद लिया ऑलरेडी HP तो आई एम सॉरी, बट यू इफ यू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पे जो ट्रक के ड्राइवर्स और बेचारे लो प्रोफाइल जितने होते हैं ना, सब HP लेके घूम रहे होंगे. यस. और जो एवरेज एग्जीक्यूटिव होंगे वो सब डेल, लिनोवो, डेल, एसस. गेमर्स के लिए एसस है. ओके. और इफ यू गो टू यूरोप तो एसर जो है ना वो भी लो प्रोफाइल माना जाता है इन यूरोप especially. So don't worry about that. If you want to buy an IBM grade machine, then go for Lenovo. IBM itself is expensive. Lenovo is IBM. Okay. HP with anything. HP के जो क्राइटेरियाज होते हैं ना मशीन बनाने के, वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को लेके होते हैं, परफॉर्मेंस को लेके नहीं होते. लेकिन अगर कोई मुझको पूछे नहीं, मेरे को एक अगर समझो विंडोज में बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, तो तुमको बोलूंगा तो तुमको शायद यकीन नहीं आएगा. फिजित्सु हैपेंस टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बट तुमको पसंद नहीं आएगा. वो दिखने में गंदा दिखता है. मिलिट्री वालों के लिए बनाया जाता है. फिजित्सु, सीमेंस, तोशिबा, ये सब मिलिट्री वालों के. तुम देखोगे बोले क्या है, कितना गंदा बनाया इसने. हाँ ऐसे ही मिलिट्री वाले का है ना, अच्छा दिखने के लिए नहीं है वो काम करने के लिए. हाँ, आंधी तूफान बारिश कुछ भी होने दे, और गिर गया तो वो उठा के वापस चालू. That is Fujitsu. So that's how it is. And if you have money, then you can go for Mac. That's how it is. But make sure you have money. अब ये समझ में आ गया हमको एक छोटा सा प्रॉब्लम. क्या है वो? कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज. तो अब तुम्हारा इम्तिहान की घड़ी शुरू होती है यहाँ से. लेट्स सी हाउ you can answer this. So when I say G5, you tell me how many cores? वैसे अच्छा तुक्का लगाया तुमने, है ना. देखो द पावर ऑफ 2. 8 के बाद तुम जंप मारोगे 16 कोर्स पे. किधर? तो उसको क्या बोलेंगे हम? G6. नाउ यू टेल मी व्हाट इज G7? 32 कोर्स. अब कुछ लोग ऐसा सोच रहे इतना भी होता क्या? दिखा तो मैं तेरे को होता. इधर क्या लिखना है? 64, isn't it? What about G9? My God, 128 cores. Just imagine, you can use a machine with 128 cores in the cloud environment. That is too good, isn't it? However, तुम्हारा विंडोज जो है ना, उसका लिमिट यहाँ पे आके खत्म हो जाता है. 64 cores. Getting the point? उसके बाद फिर तुमको सब मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है, लाइक लिनक्स. लिनक्स कैन टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज कोर्स, वॉट एवर इट इज. अब इसके बाद जो है ना ट्वीकिंग स्टार्ट हो जाता है. ट्वीकिंग क्या होता है वो बाद में, पहले इसको खत्म करते हैं. सो सपोज इफ आई राइट 1 गीगाहर्ट्ज ओनली. ओके, याद रखना 1 गीगाहर्ट्ज. तो मेरे को रैम कितना चाहिए इधर? ऊपर देखो, यहाँ पे हमने कितना लिखा था? 16 GB. तो यहाँ पे 32, वेरी नाइस, GB. टू मेक दिस अ जनरल पर्पस. हाँ, जस्ट इमेजिन 8 कोर का जनरल पर्पस. अनबिलीवेबल, isn't it? Yes. So what about 16 cores? So we'll go 64, very nice, 128, 256 and 512 GB of RAM. चलो देखते हैं एक आधा मशीन जिसको G9 बोलते हैं ना. Let's have a look at G9. G9.
डेल एक्चुअली HP का दिखाता हूँ, चलो सस्ते वाला। क्या हो गया इसको, काम नहीं करने का? Can't open Google. Okay, let's check. Knows. ये मुझको क्या लग रहा है? My tab is connected with the cable. That's the reason it is not allowing to go on internet. I understand. And I cannot disconnect. That is another problem. So let's go to the desktop. HP ProLand. Generation 9. Okay. Oh, product description. Amazing, amazing. यहाँ पे कितने कोर्स है? यहाँ पे 22 कोर्स है। हमने लास्ट में कितने कोर्स छोड़े थे? For G9, 128 cores, isn't it? In this, they are giving 22 cores. That is also part of tweaking. Why? Because इसके जो megahertz है वो ज्यादा है। कितना है देखो, 2.4 gigahertz. So what is the amount of RAM? DDR4 का. So that is mentioned here, this side. So what we'll do is, we'll go to some other website as well. But before we go there, I want you to see the RAM, supported RAM. Here, maximum capacity. How much RAM it supports? It is 3 terabytes. RAM terabytes में support करता है। इसका मतलब क्या होता है? You understand? Okay, let's do one thing. Go to. तुम लोग Dell वगैरह पे भी जा सकते हो. I don't want to waste time. That's the reason I'm directly going to the cloud. अब ये सताएगा ना? Okay. Okay, now we are launching an instance. Actually, we are not launching an instance. I'm just showing you the types. Okay, जो हम लोग वहां पे भी देख सकते थे. Don't worry. I hate this new interface actually. पूरा मजा उसका खराब हो जाता है. Now these are all instances which are given to us. Why do we call it an instance? पहला तो यही क्वेश्चन है ना, क्योंकि इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल. तो मेरे पास से फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इफ आई हैव 32 cores, I can't give you all the cores. I will give you only one core because I'm running a business. So one core मैंने उसमें से निकाल के तुमको दे दिया, virtualized core, isn't it? So that is an instance. So अब जैसे for example, यार ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को. See? क्या किया जाए?
सी दिस इज अ मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड, ये M से स्टार्ट होता है ना जो, ये मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड है. C से जो स्टार्ट होता है वो कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड है. I से जो स्टार्ट होता है वो भी मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड है. सी एंड what we'll do is let's go to this is a better way to have a look at it. अब यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो तुमको लेफ्ट में जनरल पर्पस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड, मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड एंड स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड. अब ये जो एक्सेलरेटेड है अपने लिए नहीं है, वो बिटकॉइन वालों के लिए, ब्लॉकचेन वालों के लिए है, हमारे लिए बिल्कुल नहीं है. सो फॉरगेट अबाउट इट. ओके, दिस इज जनरल पर्पस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड, memory optimized, storage optimized. Okay, what type of machines do you get in this? तो अगर किसी ने Hadoop के लिए पूछा कि Hadoop के लिए तुमने कौन सा मशीन लिया था, तो you will always say the D type, the H type and the D type. Why? It's storage optimized. तुमको याद नहीं आ रहा है, say for example याद नहीं आ रहा है, बोला yeah we had taken a storage optimized machine. That's it. Storage optimized machine. What makes it storage optimized? We'll come to that. But अभी what is memory optimized ये समझ में आया, और what is compute optimized ये समझ में आया, और what is general purpose ये समझ में आया. तो what are the machines available ये mention किया है इन लोगों ने यहाँ पे पूरा. Okay, कि you can actually use so many things in general purpose as well. Now let me go back. Because अपना topic में बहुत कुछ बाकी है अभी. So we have understood this component. एक last and final, ये 8 कोर का जो मशीन है ना, just 1 second, let me, मैं जो चीज दिखाने के लिए यहाँ लेके आया वो भूल गया मैं. इसके लिए we are back to this machine. Okay, now I'm just clicking on the CPUs, right on top. यहाँ ऊपर दिख रहा है तुमको ये CPUs. What's going on? Okay. Let's refresh quickly. इसको छोटा करना पड़ेगा मुझको, I think so. Currently selected, अच्छा इसके लिए ऐसा कर रहा है वो शायद. See, we have already selected this 448 vCPUs with 6 terabytes of RAM. दे रहा है वो. Opt out to the old experience. नहीं. Let's go to this experience. This is the old experience, yes. तो पहले जब ये लोग ने इन्वेंट किया था ना, इसको नया नया आया था 2011 में जब मैंने अकाउंट खोला था, तो वहां पे यहाँ पे ना जो जनरेशन है ना, ये लिखा हुआ आता था which generation it is. But now it is not there because it will confuse most of the people. They know, they realize it, so they removed it. Okay, otherwise these many generations are available. अब देखो ये स्क्रीन पे मुझको सब देखने को मिल रहा है, which is good for training. No PowerPoint presentation required. तो यहाँ पे तुमको ये दिख रहा होगा, isn't it? The amount of RAM
and the amount of CPU. So जैसे मैं इसको कैलकुलेट करने को बैठूंगा ना, say for an example I want to calculate this, तो मेरा जो ये CPU का जो प्रोसेसिंग पावर है ना, in compute optimized it will always be more. And why they have not taken proper 16, okay, because this is not bare metal, this is virtualized, and ये सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट करके क्या कर रहा है. तो ये it also depends on the what is the CPU speed, isn't it? So if I go here, now they are not showing that information also over here, but it's okay. तो यहाँ पे दिया है, देखो इधर यहाँ दिया है कि तुम्हारा ये जो है ना, ये बहुत भारी है, पावर बहुत ज्यादा है, इसको 2.9 गीगाहर्ट्ज का है when you're taking this particular machine. Okay, now let's go back. This is what I wanted you to see. Now since you know कि इसके जो लिमिट है वो G9 के बहुत ऊपर चला गया, वो ये तो तुमने नोटिस कर लिया कि it is above G9. The question arises just to practice कि मेरे पास सपोज 8 कोर का मशीन है, 32 GB का रैम है और 1 गीगाहर्ट्ज का पावर है. I call this a general purpose. I want to make it a memory optimized machine. So what is the RAM, maximum RAM that I can increase? So uska answer hai you can go up to 64 GB, isn't it? Yes. अब ये वाली नॉलेज तुमको कब काम आती है पता है? यान में, मेसोस में, क्यूबरनेटिस में, कंटेनराइजेशन में, हर जगह काम आती है ये वाली नॉलेज कि इसको इससे ज्यादा दे नहीं सकते, इससे कम देंगे तो भी कुछ फायदा नहीं है. And that's how you do cluster planning and capacity planning. But for now 64 दिया तो मैंने क्या बना दिया इसको, memory optimized. And the moment suppose if I don't increase this, condition क्या है, I'm not increasing this, I am only increasing this, then I am making it a compute optimized. So if I make this 3 gigahertz, even then it is a compute optimized. So suppose मेरे पास यहाँ पे 32 GB का RAM है और मैंने 2 गीगाहर्ट्ज कर दिया इसको, तो ये बहुत ऑप्टिमल चलेगा इन कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड. हाउएवर जब मैंने इसको 3 गीगाहर्ट्ज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा पता है, रैम से ज्यादा फास्ट जाएगा, इट विल गो फास्टर देन द रैम. तो उसको क्या रहेगा, वो कंप्यूट ऑप्टिमाइज कैटेगरी में इट विल रिमेन, हाउएवर it will be much faster. So मेरे को I have to make sure कि my RAM is also fast. So when I say my RAM is also fast, what do I mean by that? So हमको वो EDO RAM के बारे में डिस्कस करके कुछ फायदा नहीं है, पुराने जमाने की है. हमको रैम्बस के बारे में डिस्कस करके कुछ फायदा है, कुछ फायदा नहीं. हमको फायदा है किसके बारे में डिस्कस करके, DDR, DDR3, DDR4. Why? Because अब जो चलता है वो यही चलता है. तो मतलब क्या है, इसको शॉर्टकट में कैसे समझाऊं मैं? Whenever we talk about a CPU, there is a cycle that CPU needs to complete, and this cycle involves the power, the core, and the RAM. Yeah, it involves all of them. However, whenever we talk about a RAM, we talk about the refresh rate. So to understand this easily, कि DDR RAM में जो refresh rate होता है वो क्या होता है? So for example, in the time of Windows 98, याद है Windows 98 आया था, वो टाइम पे जब तुम लोग अपना RAM, तुम्हारा जो माउस है, say for an example you move your mouse, तो कुछ लोगों को प्रैक्टिकल देख के ही समझ में आता है, isn't it? तो you move your, say this is your window and you're moving it like this, okay? So इसका जो refresh rate है ना, अगर वो बहुत high है तो it will come back to where you left. If the refresh rate is not high, it will not be able to cope up with this speed. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है you will require a restart.
क्योंकि तुम्हारा रैम के ऊपर जो हेक्साडेसिमल के जो कोड्स थे ना, वो सारे के सारे कोड क्या हो गए, मिसमैच हो गए। और वैसे भी तुम्हारा 98 में एरर करेक्टिंग कोड नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ECC, error correcting code. In servers we always have this feature. Where is this feature? It's on motherboard. Okay, error correcting code. With the help of error correcting code, it can actually get it back, but for that you will have to sit for at least 1 hour. तो रीस्टार्ट ज्यादा फास्ट है कि 1 आवर वेट करना फास्ट है? रीस्टार्ट फास्ट है। तो लोग क्या करते थे, रीस्टार्ट करते थे। लेकिन जैसे ही DDR3 आया, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। अब तो DDR4 चल रहा है ऑफ कोर्स। तो इसका जो रिफ्रेश रेट है वो बहुत हाई है, तो उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। हाउ हाई इज इट? इन केस ऑफ DDR3, this is the start range, and then it ends somewhere, right? 2100 megahertz. लेकिन इंडस्ट्री ने हमेशा यहाँ पे आके रुक गई है। इंडस्ट्री does not go above this. So anybody who can tell me why it doesn't go above this, above 1600 megahertz? Yeah, because it is optimal. ऑप्टिमल इतना ही है बस। तुम्हारा CPU और वो सब कैलकुलेट करने के बाद उनको समझ में आता है इतना ही ऑप्टिमल है। ये वेस्ट है, वेस्ट। तो लोग छोड़ देते थे उसको। और मैन्युफैक्चरर्स ने भी डिमांड ना होने की वजह से ज्यादा ये वाला रैम मैन्युफैक्चर ही नहीं किया, एंड दे जंप्ड डायरेक्टली टू व्हाट? DDR4। तो अभी आजकल लोग क्या करते हैं, DDR4 का जो रैम है, suppose you're using gaming machine, then you will require this machine, this one, which is hard to get, but तुम्हारा काम इससे भी होता है। Depends how to do it. So servers में ये वाला भी बहुत हो गया। It's more than enough. Why? Because nowadays हमारा जो CPU का जो power है वो it is gone above 3 gigahertz. That's why we need this. तो तुमने एक चीज नोटिस किया होगा, there has to be compatibility with all the components, isn't it? So ये जो compatibility है in all the components, इसको समझना पड़ेगा कि नहीं? समझना पड़ेगा, yes. वो समझने के लिए तुमको ये समझना पड़ेगा what is power on self test. So ये हम लोग स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा ब्रेक लेके, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद we will begin from here. So small break, take a breather. Okay, so let's begin with where we left. So the word post, power on self-test. Okay, so the moment we say power on self-test, see why I have to take this before understanding a lot of other things, because this, once you have understood this component, you understand a lot of things, how it actually works, okay, in the background. So many a times you will hear the words like it is on the RAM, it is in memory, it is I mean there are some bottlenecks, CMOS, BIOS, there are some errors which are of black screen. So all these problems get resolved once you understand this topic. Tomorrow we are going to continue with another topic that is about networking. So it is going to be a little hectic. Okay, for some people, yes, it is going to be a little hectic because it may take about 3 hours. And we don't have too much of time. And after that, which means next week, your bad days begin. बुरे दिन शुरू होते हैं. Yes. Why? Because all the main topics of how to deploy a cluster and cloud topics, अब एक के बाद एक सब सर पे आना शुरू हो जाएगा. हमारे लिए ये बेसिक्स है. हमारी इंडस्ट्री में बेसिक्स माना जाता है. Not even basics. This is -1 and -2. So ये पार होने के बाद तुम आओगे किधर? 0 के ऊपर. अभी 0 पे भी आए नहीं हम लोग. So it will take some time, of course, but these are the 2 topics that will complete our basics. -1 and -2.
which means after the cloud sessions are over, you come on 0. फिर वहां से नंबर लगना शुरू होते हैं. तो अब जो लोग जॉब कर रहे हैं, इनके लिए एक चेतावनी है, फाइनल चेतावनी. ओके, दैट इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, नेक्स्ट वीक के सेशंस तो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं. ओके, ये सब तो चलो ठीक है, बेसिक्स है, कुछ आया नहीं आया सब समझ में आता है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. बट व्हाट इज अ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट? दिस इज द नेम ऑफ अ कॉन्सेप्ट. IBM का क्रिएट किया हुआ कॉन्सेप्ट है. IBM का बोलना है कि जब मशीन चालू होता है, कंप्यूटर सर्वर, तब एक टेस्ट होता है, उसका नाम क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. Which means when you turn on your computer, the power is already there. You know, that power is given to the machine from a battery. तुमने बहुत बार सुना होगा कि एक बैटरी से पावर जाता है उसको, लेकिन is that enough for a computer? No, it is not. So why do we have that battery? We have that battery for a real time clock. एक घड़ी है, घड़ी, जिसके लिए वो बैटरी जरूरी है. So it is actually important for a component known as CMOS. CMOS क्वेश्चन क्या है? ये एक रैम का नाम है, लेकिन ये रैम है ना, ये रीड ओनली रैम है. एक होता है रीड राइट रैम और एक होता है रैम विच इज ओनली रीड ओनली. मतलब तुम इसको है ना प्रोग्राम घड़ी घड़ी नहीं कर सकते एक ही बार, तो इसको रोम बोला जाता है. यस, एब्सोल्युटली, इट इज रोम. नाउ व्हाट हैपेंस विद दिस? तो जिसने ये मदरबोर्ड इन्वेंट किया होता है या मैन्युफैक्चर किया होता है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है? अपने मदरबोर्ड में प्रोग्राम करता है और ये रैम को इसके अंदर डाल के, मतलब रोम के अंदर वो अपने प्रोग्राम को डाल के छोड़ देता है. उस प्रोग्राम में क्या लिखता है? वो लिखता ये है कि सी आई एम क्रिएटिंग दिस फॉर XYZ CPU, XYZ RAM, XYZ कंट्रोलर्स. अब वो जो XYZ है उसको क्या बोलते हैं? उसको हार्डवेयर बोलते हैं, अदर हार्डवेयर, इजंट इट? तो मदरबोर्ड किसने बनाया? A particular company makes a motherboard. Then who makes CPU? Some other company makes CPU. Then who makes the RAM? Some other company will make the RAM. Who makes the hard drive? Who makes the network card? Who makes all the other RAID card and other controllers? तो सब अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स क्या होने वाले? एक जगह पे जमा होने वाले. Exactly. So this particular information is stored in the CMOS. And this is connected to a south bridge. It's connected to what? A south bridge. And this south bridge is connected. Now you will ask, what is a south bridge ultimately? And what is a north bridge? तो उसका आंसर chipset. तुमने सुना होगा ad, Intel Inside. So Intel is actually not talking about the CPU. Yeah, it is a laugh actually. बहुत लोग हंसते, उनको जो ये बात पता है कि it's actually talking about the chipset. It's not talking about the CPU. But public ने उसको CPU ले लिया. Intel Inside मतलब CPU. And उसका मदरबोर्ड मार्केट पकड़ने की जगह CPU मार्केट. CPU का तो ऑलरेडी मार्केट था उसका, उसको उसके लिए ऐड करने की जरूरत नहीं थी. लेकिन उस बेवकूफ को ये नहीं समझा कि मदरबोर्ड का ऐड ऐसा नहीं करते. अल्टीमेटली उसको क्या मिला? CPU को बूस्ट मिला जो कि ऑलरेडी था. That's how it works. Okay, so when it says Intel Inside, it's talking about the chipset. So this is chipset number 1, chipset number 2. This chipset has to do with BSB, and this chipset has to do with FSB. What it is, we'll come to that. What is this? This is a battery. Acha, why do we need a battery? So that we have the real-time clock, okay, ticking. It gives us the correct timing. ये उस जमाने का उनका सोच था. अभी आजकल हम लोग ये टाइमिंग इससे रियल टाइम क्लॉक से नहीं लेते. ओके, अभी हम लोग किससे लेते? NTP सर्वर से लेते. That's how it is. Even your mobile phones, they take it from NTP server. Now the question arises, we have a north bridge and a south bridge. What is the function?
So the function is we have controllers. What type of controllers? Any controller that does not require a high speed what? Bus. High speed bus. So the question arises, why do you call it a bus? Very nice. So पहले हम लोग इसको लिख देते हैं network HDD. Okay. So some people, those who are thinking कि why I did not write controllers के नीचे मुझको क्या लिखना चाहिए था, USB and all that, sound, video, ना हमारे यहाँ नहीं है, ये सर्वर है. सर्वर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, निक एंड हार्ड ड्राइव, दैट्स इट. तो ये दो कंट्रोलर इससे कनेक्टेड है. नाउ देयर आर अदर कंपोनेंट्स लाइक रैम एंड VGA, video graphic accelerator, and a CPU. So let's write CPU separately and take another color for you to understand quickly. अब एक question arise होता है कि I do have RAM, VGA, CPU, North Bridge, South Bridge, controllers. So how many controllers I have? Many. How many are in use? Only 2. Hard drive and NIC. So the moment my computer starts, मतलब पावर को जैसे ऑन किया तो क्या होगा, एक सेल्फ टेस्ट होने वाला है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. इसको हमारे यहाँ पे बायोस भी बोला जाता है. You know why they call it a BIOS? Because it has some meaning. Basic input output systems. So what is that basic input output systems? ये भी एक question है ना? Yeah, it is checking that all the hardware, all the components are working functional. भाई सब बराबर काम कर रहे कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा चेक करने के बाद. तो चेक करने के लिए पहले किसको सवाल पूछूं मैं? Should I ask the first question to hard drive, network, RAM, graphics, CPU, North Bridge, South Bridge, CMOS? किसको पूछूं मैं पहला क्वेश्चन? तो हमारे यहाँ पे जो गिनती शुरू होती है ना, वो 0 से शुरू होती है. किधर से? 0 से. Yes. So they created IRQ. What is IRQ? इसका मतलब होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट. अब जिसको इलेक्ट्रिकल्स आता है ना थोड़ा बहुत, वो जो हमारे घर में एक बोर्ड होता है ना, सर्किट बोर्ड बोलते हैं उसको, isn't it? This is actually on a circuit board. This whole thing is on a circuit board. और टेक्निकली उसको सर्किट बोर्ड ही बोला जाता है. मदरबोर्ड टेक्निकल वर्ड नहीं है. Yeah, it is for the consumers to understand. Now, what is interrupt request? IRQ. It is a program written here in the CMOS that 0 से लेके 15, इसको क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल, राइट? 0 से लेके 15 तक IRQ के नंबर्स होंगे और तू 0 से स्टार्ट करेगा. तो इन लोगों ने बोला 0 हम लोग देंगे किसको? कीबोर्ड. अभी तुम्हारे को समझाने के लिए मैंने कीबोर्ड लिखा है. एक्चुअली टेक्निकल डॉक्यूमेंट में आउटपुट डिवाइस बोला जाता है. याद है तुमको? इनपुट आउटपुट सिस्टम. एग्जैक्टली, बायोस, इनपुट आउटपुट सिस्टम. सो इसका IRQ एड्रेस होता है 0 और इसका होता है 15. तो तुमको 0 और 15 पता चल गया. और क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अगर 2 स्लॉट है, कंट्रोलर्स, स्लॉट तुम बोलते हो ना, स्लॉट, हम उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलर्स. So suppose I have 2 controllers for hard drive, I will have 14 and 15 dedicated. I may have 12 and 13 for the NIC. So the question is, बाकी के सब किधर है?
So number 1 goes to the CPU, and then number 2 to the North Bridge, number 3 and number 4 and blah blah and blah. अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे कुछ काम के नहीं है. हमारे इंपॉर्टेंट काम का क्या है? हमारे लिए काम का है ये 0, 14 and 15. बस, that's it. Why? That's a good question. Why? तो जैसे ही मैंने पावर ऑन किया तो सबसे पहले क्या हुआ? सीमॉस को इंफॉर्मेशन गया कि भाई कंप्यूटर चालू हो गया है. तो इसने क्या किया? क्योंकि ये पहले से जाग रहा था ना, बैटरी की वजह से जाग रहा था कि नहीं? जाग रहा था. तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन था. इसने बोला कि मैं IRQ चेक करता हूँ. व्हाट इज दिस? IRQ. और कीबोर्ड में सबसे पहले तुमको लाइट दिखाई देती है. दैट मीन्स कीबोर्ड इज फंक्शनल. देन इट जम्प्स डायरेक्टली टू द CPU and it will ask a question, are you okay? इसको ओके सिग्नलिंग मैकेनिज्म बोलते हैं. सिग्नलिंग मैकेनिज्म, जैसे लिनक्स में भी सीमा फोर्स होता है, वैसे इसमें सिग्नलिंग मैकेनिज्म. एंड द मोमेंट दिस गाय सेज आई एम ओके, तो मतलब क्या होता है? इसका कोई ना कोई सॉकेट होगा कि नहीं? यस, इसका एक सॉकेट है. तुमने सॉकेट में बराबर CPU को लगाया कि नहीं लगाया? लगाया. पता चला इंटेल का मदरबोर्ड है, AMD का CPU है और वो कंपैटिबल नहीं है, और तुमने जबरदस्ती का उसको घुसाड़ दिया अंदर, पिन तोड़ दिया in the wrong socket. So will I get the OK signal? No. If you don't get the OK signal, you will get some beep. And that beep will be decided by the motherboard manufacturer. Motherboard manufacturer decide करेगा कि 5 beep का मतलब RAM का प्रॉब्लम है, 1 beep का मतलब ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है, long beep का मतलब मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, है ना. तो वो सारे के सारे तुमको बीप्स के ऊपर बताएगा कि ये प्रॉब्लम किधर है. अल्टीमेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि अब क्या हुआ? ओके. तो इसने बोला ओके, इसने बोला ओके, ओके एंड ओके एंड ओके एंड ओके, एवरीबॉडी सेड ओके. तो लास्ट में किधर आएगा वो? लास्ट में आएगा वो 14 के पास. 14 बोलेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तू 15 के पास जा. तो 15 के पास आया. अब 15 पे हार्ड ड्राइव लगी हुई है. यस, लगी हुई है. तो वो हार्ड ड्राइव को पूछेगा आर यू ओके? तो बोलेगा यस आई एम ओके. फिर उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा. अच्छा, कौन पूछेगा क्वेश्चन? सीमॉस. सीमॉस, क्योंकि उसमें क्या है? एक प्रोग्राम है. दिस इज अ ROM, रिमेंबर. उसमें एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में लिखा हुआ है, तू जब IRQ 15 पे जाएगा ना, पहले 14 पे जब जाएगा तो वहां पे भी ये सवाल पूछना, अगर देखो यस आंसर मिला तो. लेकिन इसने तो बोला नो, इसने बोला यस, क्योंकि यहाँ हार्ड ड्राइव लगी हुई नहीं थी, यहाँ लगी हुई थी 15 पे. तो हार्ड ड्राइव जहां लगी हुई, उसने बोला यस. इसने बोला आर यू ओके? बोला यस. द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द बूट लोडर? क्या क्वेश्चन है? वेयर इज द बूट लोडर? लेकिन एक पॉइंट है, उसको कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन किधर पूछना चाहिए? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, इजंट इट? तो जब वो इधर इसको पूछता ना आर यू ओके, तो ये हार्डवेयर का क्वेश्चन था. ये पॉइंट याद रखना. दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू हार्डवेयर. डज इट बिलोंग टू सॉफ्टवेयर? नो. द क्वेश्चन दैट आई एम डिस्कसिंग नाउ इज अबाउट अ सॉफ्टवेयर. तो ये क्या करेगा? जैसे हार्ड ड्राइव बोलेगा ना कि बस मैं बराबर हूं, बोलेगा ठीक है, तेरा MBR किधर है? तो बोलेगा मेरा MBR जो है वो इधर है, विच इज अ 512 KB का स्पेस. 512 KB नहीं है यार, सॉरी, 512 bytes. How small is that? बहुत छोटा, बहुत छोटा. Now this small area is the fastest area on hard drive. इस पे क्या लिखा होता है? इस पे लिखा होता है master boot record, which means where is the operating system? It tells the CMOS. तो in shortcut, if I want to tell you कि ये सॉफ्टवेयर है, याद है ये सॉफ्टवेयर है, इसने अभी कम्युनिकेट किया किसके साथ?
भाई सॉफ्टवेयर ने कम्युनिकेट किया किसके साथ? फर्मवेयर. वेरी नाइस तनवीर, एक्सीलेंट. फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर ने फर्मवेयर के साथ कम्युनिकेट किया, विच मीन्स नाउ फर्मवेयर ने कम्युनिकेट किया इसके साथ और बोला कि देख भाई मेरा काम खत्म हो गया. मेरा काम क्या था? पोस्ट. With the help of IRQ, I came to know everything is okay. Now I am handing over everything to you. I am handing over का मतलब है, हम लोग इसको बोलते हैं हैंडशेक. हैंडशेक टेक्स प्लेस ओवर हियर. मतलब मैं हाथ मिलाया किससे? फर्मवेयर ने हाथ मिलाया किससे? सॉफ्टवेयर के साथ. क्यों? क्योंकि एमबीआर पे क्या है? मास्टर बूट रिकॉर्ड. काय का मास्टर बूट रिकॉर्ड है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस. अब मैंने तुमको पिछली बार बताया था, याद है? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये होता है दोस्त, कर्नल, ड्राइवर्स, शेल and X server. If it is GUI, if it is GUI, X server. If it is CLI, shell. तो हमको CLI तक जाना है. GUI गया तेल लेने को अभी के लिए, ओके, बिकॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट शेल है. सो द क्वेश्चन इज, जब ये हैंडशेक होगा उसके बाद क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है. तो उसको ये पता चलता है कि कर्नल रखा हुआ कहाँ है, वेयर इज द कर्नल. तो वो कर्नल को बोलता है भाई साहब आप चलेंगे हमारे साथ? तो ये पूछेगा ना किधर, तो बोलता है तेरे को चलना है यहाँ पे रैम के ऊपर. हमारे कर्नल का नाम क्या है? वीएम लिनक्स. तो वो कर्नल एक्चुअली उसको कर्नल देता है कि उसका कॉपी देता है? उसका कॉपी देता है. ओरिजिनल कर्नल कहाँ रहता है? हार्ड ड्राइव पे. इट जस्ट गिव्स द कॉपी. बोलता है ये कॉपी ले और जा रैम के ऊपर. लोड हो गया. अब कर्नल को ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ड्राइवर लोड करना चाहिए? यू टेल मी. हाउ विल कर्नल कम टू नो which drivers I am supposed to load? हाँ, IRQ, फर्मवेयर. याद है जब ये फर्मवेयर ने IRQ से सब ओके पूछा था, बराबर है? तो यहाँ पे है ना हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी लिस्ट हैंड ओवर किया था कि नहीं किया था? हैंड ओवर किया था. किसको? इस हैंडशेक में किया था उसने. अब क्योंकि उसने HCL इसको दिया है हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी लिस्ट, तो कर्नल को एक्चुअली पता है कौन से ड्राइवर्स लोड करना है. तो कर्नल एग्जैक्टली वही ड्राइवर्स लोड करेगा जो इस लिस्ट में है. तो वो सीपीयू का ड्राइवर लोड करेगा, नॉर्थ ब्रिज का करेगा, रैम का करेगा, VGA का करेगा, साउथ ब्रिज का करेगा, कंट्रोलर्स का करेगा. एंड इट विल गिव यू अ मैसेज. व्हाट? कि योर शेल हैज स्टार्टेड बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ लोडेड. तो जैसे ही शेल आया तो तुम्हारी जान में जान आ गई. हाँ भाई अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चालू, काम चालू. दैट्स व्हाट इट मीन्स. Now, because once you have understood this component, इसको क्या बोला जाता है? बूट प्रोसेस. किसका? हार्डवेयर का, लिनक्स का नहीं है. तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे है जो लिनक्स का बूट प्रोसेस कोई पूछता नहीं तुम्हारे जमाने में. यस, बच गए तुम लोग. कभी कभी यूके वाले रहते, वो यूके वालों की खोपड़ी ऐसी रहती है कि वो लोग कभी कभी ये प्रोसेस तुमको पूछ लेते हैं. व्हाट इज द बूट प्रोसेस ऑफ अ लिनक्स मशीन? तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो. तुम लिनक्स का बूट प्रोसेस बताना शुरू करते हो अगर तुमको आता है तो. इसलिए मैं बताता ही नहीं क्योंकि वो पूछ ही नहीं रहा है तुमको. लिनक्स का बूट प्रोसेस नहीं पूछ रहा है. मतलब ये जो है ना, ये कंपोनेंट, ये कर्नल, यहां पे लिनक्स का एक बूट का प्रोसेस है. यस, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन which I am skipping for now because our topic is about hardware. This is about the firmware boot process. आया समझ में? लिनक्स का बूट प्रोसेस नहीं है ये कि हार्डवेयर तुम्हारा चालू कैसे होता है.
मशीन चालू कैसे होती है, तो उसमें पोस्ट होता है, IRQ होता है, ओके सिग्नलिंग होती है, हैंडशेक होता है, MBR होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड हैंड्स ओवर दी रिकॉर्ड टू हुम, टू द कर्नल। तो यहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ लिखा है ना, ये वाला OS है ना, इसकी जगह पे मुझको लिखना चाहिए था, टू मेक इट सेंसिबल, बूट लोडर। बूट लोडर, कर्नल, ड्राइवर, शेल, यू आर डन। तो तुमको याद क्या करना है, पर्सपेक्टिव है ना, पोस्ट IRQ, ओके सिग्नल, हैंडशेक, MBR एंड देन बूट लोडर। अब बूट लोडर विंडोज वाला होगा तो उसका बूट लोडर का नाम क्या है, boot.ini। अगर लिनक्स वाला है तो उसके बूट लोडर का नाम क्या है, ग्रब। अगर पुराना लिनक्स वाला कोई बंदा है तो उसको पता होगा कि उस जमाने में बूट लोडर का नाम क्या था, एनीबडी हु नोस? लाइलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब क्या चलता है, ग्रब, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर चलेगा। ओके, नाउ सपोज इफ आई एम यूजिंग एप्पल का मैकिंतोश, देन माय बूट लोडर विल बी, इसने अपने बूट लोडर का नाम भी डार्विन ही रखा है, तो मैं क्या करूं? अच्छा है ना, अपने को कुछ ज्यादा याद नहीं करना पड़ता है। तो एवरीबडी हैज देयर ओन बूट लोडर। सो सपोज इफ आई आस्क यू, तुम्हारा विंडो, तुम्हारा जो एंड्रॉयड है उसका भी तो कोई ना कोई बूट लोडर होगा। सो फॉरगेट अबाउट दैट। ओके, एक्चुअली वो जो तुम उसका नाम लेते हो ना, say for example if you are using an Android and you're saying the code name, that is the bootloader. So that's how it works. But everybody has the bootloader. Every operating system must have a bootloader. Anyway, तो अभी यहाँ पे हमको इतना पॉइंट समझ में आया। Now let's talk about the cycle. साइकिल के लिए ये कलर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, ये वाला साइकिल जो है ना, हाँ आइसक्रीम, सैंडविच, किटकैट, ये जो भी नाम देता है ना वो, दैट इज सबके लिए अपना अपना, दे क्रिएट दैट। Okay, now the question is, power on self test. Okay, ये हमको समझ में आ गया कि दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर देन ब्ला 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 ब्ला। अब ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है कि नहीं, एंड तुमने क्या किया, एक प्रोग्राम चालू किया, यू स्टार्टेड एनी प्रोग्राम। सो वेयर इज दैट प्रोग्राम राइट नाउ? So that program is sitting somewhere on the hard drive. Excellent. Yeah, it is. तो तुमने ऐसा डबल क्लिक किया उसके ऊपर। अभी समझो तुम CLI के ऊपर हो, तो तुमने उसका नाम कमांड टाइप किया और एंटर मारा, तो उसने ना उसके लिए कॉल किया। विंडोज वाले उसको RPC कॉल बोलते हैं, रिमोट प्रोसीजर कॉल। नाउ द मोमेंट वी मेक अ कॉल फ्रॉम हार्ड ड्राइव, तो यहाँ पे इस कंट्रोलर से इसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना, किसको, कर्नल को। कर्नल इज गोइंग टू कम्युनिकेट to the controller, and controller is going to hand over, it is going to give you that particular program, access to that program, and it will be loaded first on your south bridge. From south bridge it is going to travel to your north bridge. From north bridge it will go to the RAM. अब RAM को अनपैक करने के लिए क्या चाहिए, CPU पावर। सो वो रिक्वेस्ट किसको भेजने वाला है, CPU को बोलेगा कि भाई देखिए मेरे को अनपैक करके दे। तो यहाँ पे क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा ना उसको, लाइन में। उसको कैशे बोला जाता है, कैशे रैम, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ रैम, जिसके अंदर वो खड़ा रहेगा, बोलेगा भाई CPU का भी काम चालू है, अच्छा अभी फ्री हो गया, चल मेरे को ये अनपैक करके दे। वो उसको अनपैक करके देगा, CPU पावर यूज हुआ। आफ्टर अनपैकिंग CPU को कहीं तो रखना है उसको, इट इज गोइंग टू थ्रो बैक ऑन द रैम, जहां से आया वहीं पे उसको फेंकेगा। जैसे ही उसने वहां फेंका, तब जाके तुमको क्या दिखेगा, उसका डिस्प्ले पे इमेज दिखेगा।
कि भाई यहाँ इसने ये काम कर दिया है. You got to see that image on the VGA, मतलब graphics on your monitor. However, point to remember, ये जो साइकिल है, कौन सा साइकिल? ये नॉर्थ ब्रिज, RAM to North Bridge and CPU is called the FSB, which requires high speed. What it requires? High speed. So high speed what? High speed bus. अब क्वेश्चन ये है कि बस क्यों बोलते भाई? That's a good question. We'll come to that. अच्छा, anything that needs to be loaded on the south bridge. ये north bridge है और ये south bridge है. Anything that wants to load on south bridge is known as a backside bus. तो जैसे ये high speed bus है, वैसे ये slow speed bus है, very slow. Controllers slow in comparison. Slow to compare किससे कर रहे हैं हम लोग? ये जो 3 GHz वाले लोग हैं, 3 GHz, and if you have DDR3, then possibly you're running this also on 2 GHz, DDR4. तो तुम्हारा ये जो स्पीड है देखो, 3 GHz and 2 GHz, हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड. ये बेचारा साउथ ब्रिज जो है, ये हार्डली मेगाहर्ट्ज में चलता है. 800 megahertz, 900 megahertz. So you tell me, what is the bottleneck? तुम्हारी स्पीड जो रोक रहा है वो कौन है? वो तुम्हारा साउथ ब्रिज है ना. इसीलिए ये जो नए आर्किटेक्चर्स आए ना, अभी जितने भी नए आर्किटेक्चर, न्यू आर्किटेक्चर्स, व्हाट दे हैव डन, दे हैव कनेक्टेड योर हार्ड ड्राइव्स टू द नॉर्थ ब्रिज. NVMe RAM, वेरी नाइस. देखा, तनवीर को पता है. ये जो साउथ ब्रिज है ना, ये कंट्रोलर नेटवर्क के लिए है आज भी, लेकिन हार्ड ड्राइव्स आर नाउ कनेक्टेड डायरेक्टली टू द नॉर्थ ब्रिज सो दैट यू गेट फास्टर स्पीड. लेकिन उससे तुम्हारा कॉस्ट बढ़ जाता है, याद रखना. सो नॉट नेसेसरी एवरीबडी इज यूजिंग दैट. दे मे यूज इट, दे मे नॉट यूज इट, बट तुमको ये पता होना चाहिए कि ये आर्किटेक्चर इस तरीके का है, इसके लिए फास्ट है, और ये आर्किटेक्चर इस तरीके का है, इसलिए स्लो है. सो जब तुम्हारा क्लाउड का टॉपिक आएगा तो ये चीज पर्सपेक्टिव में बैठ जाएगी, डोंट वरी. सो इफ यू आर कनेक्टिंग अ सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव, okay, so there are high chances that your solid state hard drive is connected to south bridge, not with north bridge. Yeah, I say ये solid state hard drives are faster than hard drive, the mechanical hard drives or the magnetic hard drives, but it is not like NVMe RAM. उसको तो डायरेक्ट हार्ड ड्राइव बोलते भी नहीं है, उसको क्या बोलते? NVMe RAMs. Why? Because it works like a RAM. It is very fast, as good as a RAM. Getting the point? That's the difference. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हमको पता होना चाहिए. लेकिन हम उसके ऊपर डेटा को कभी स्टोर नहीं करेंगे. डेटा स्टोर करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? These hard drives, whether it is मैकेनिकल हार्ड ड्राइव, मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव्स और वट एवर इट इज. तो अगर समझो मैंने दोनों भी यूज किया, आई एम यूजिंग बोथ NVMe RAM एंड हार्ड ड्राइव मेरे आर्किटेक्चर में, उसको बोला जाता है फ्यूजन. ये सबसे पहले जिसने इन्वेंट किया था, ये दिमाग लगाया था इस चीज पे, उसका नाम है एप्पल. एंड देन लेटर ऑन पीपल स्टार्टेड कॉपिंग एप्पल एंड फ्यूजन बिकेम फेमस. कि चलो हम लोग ये काम करेंगे, डेटा को स्टोर करने के लिए ऑप्शन ये अच्छा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को रखने का है तो किधर रखेंगे? NVMe RAM के ऊपर रखेंगे, सो दैट इट वर्क्स फास्टर एंड वी कैन गेट रिजल्ट्स फास्टर एंड वी आर नॉट वरीड. बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम की आदत क्या है? वो हमेशा एक कॉपी देता है ना. That's it. It gives a copy. Now the question is, why do you call it a bus? जब बस है तो ड्राइवर भी होना चाहिए, isn't it? That is because when anything is written on hard drive, it is written in a block, okay? And
हार्ड ड्राइव क्योंकि किसी मैन्युफैक्चरर ने बनाया होता है, बराबर है कि नहीं, और वो मैन्युफैक्चरर ने उसका ड्राइवर्स तुमको दिया होता है। और ब्लॉक्स जो है दे ट्रैवल इन अ बस, दे ट्रैवल इन अ बस का मतलब मदरबोर्ड पे व्हेन दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस दे हैव टू ट्रैवल इन अ बस with a particular driver because it is in a block. However, the moment हम लोग ये नेटवर्क में आ जाएंगे तो नेटवर्क में हम इसको बस नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, पैकेट्स। सो यहाँ पे निक है ना, यहाँ पे हार्ड ड्राइव है, यहाँ पे निक है, तो जो इसके लिए ड्राइवर लगेगा कि नहीं लगेगा? सो द आंसर इज यस, ड्राइवर इसके लिए भी लगेगा। लेकिन ये जो ड्राइवर है ये तुम्हारा नेटवर्क कार्ड का ड्राइवर है। तो ड्राइवर इज here also, but here we are calling it a packet. Why? To differentiate in between the motherboard and the network. इसीलिए हम जब लिखते भी है ना तो इसको ऐसा लिखेंगे, megabyte per second, megabit per second. So here we are writing capital, isn't it? क्योंकि जब भी blocks है, blocks, this is about blocks, it's going to write blocks. So the block is a bigger in size, this is in bits, smaller in size. तो अगर तुम नोटिस करो तो बस के अंदर बहुत सारे लोग भर के जाते हैं ना एक साथ, है ना, वही कॉन्सेप्ट उठाया उन्होंने लोग। या 8 bits is equal to 1 byte, and how many bytes make one block? तो we are not talking about that, ये तो हमने पिछली बार डिस्कस किया था यार, भूलने का नहीं रहता उसको। This is a bit, और 8 बार इसको ऐसा करेंगे तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, this becomes your byte, isn't it? And this is now your block. So we are talking about this particular block. अच्छा, ये block समझता कौन है? Who understands? Kernel. Kernel understands that this is the block, and that depends on the operating system's architecture, not on the architecture of your hardware. अगर मेरे पास Linux है तो मेरा block का size क्या रहेगा? 8 KB, 4 KB, isn't it? What is true? तुमको प्रैक्टिकली उसको देखने को बताया मैंने, कैसे प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं इसको। Suppose you are using Windows, then the block size can go up to 64 KB, which is huge. याद रखना, which is huge, है ना, 64 KB is huge. तो जब तुम फॉर्मेट करते हो तो पूछता है ना, do you want to format? तो अभी हमारे ब्लॉक का नाम क्या होगा लिनक्स का? ext3 और ext4, और विंडोज के केस में क्या होगा? FAT32 NTFS. And in case of Mac, APFS. And they also use 8 KB. तो यहाँ पे देखो blocks, the block, and the block. And suppose if I am using a data operating system like HDFS, HDFS का block size क्या होगा? 128 MB. Huge, isn't it? भाई किधर KB और किधर MB, कौन सी दुनिया में? Huge, because it takes care of the big data, so it's supposed to have a big block size. Huge, such a big block size. अब इसको हमको प्रैक्टिकली देखना है, ये ब्लॉक को, जो हम लोग नेक्स्ट संडे या सैटरडे देखने वाले, आई थिंक संडे को देखने वाले, यस। और वहां से तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं,
बहुत बुरे दिन, माय गॉड। उस दिन तुमको ये समझ में आएगा, अरे यार इसको 19 लाख मिला ना, बहुत कम मिला रे बाबा, इतनी मेहनत है। This is how it is. Getting the point? So there are so many other operating system, XFS, EFS, बहुत सारे operating systems, बहुत सारे sizes, block sizes है. We are talking about some common ones which you can remember and correlate to practical world that you are going to enter. तो अभी यहाँ पे ये जो HDFS का जो block है, ये एक block हो गया. S3 का अपना एक ऑब्जेक्ट का एक ब्लॉक होगा. सो एवरीथिंग हैज इट्स ओन ब्लॉक. अल्टीमेटली तुमको ये बात समझ में आ गई कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, फर्मवेयर का बूट प्रोसेस. ओके, दिस इज हाउ द बूट प्रोसेस वर्क्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट. तुमने ये सुना ही होगा, अभी हम लोग ने ये ब्लॉक्स के बारे में जो है ना पिछली बार डिस्कस किया था, लिनक्स मशीन के ऊपर उसको देखा भी था प्रैक्टिकली. ओके, बाय creating a file. So you want to refer to that once again? Yeah, you're welcome. अभी हमने दो कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया है. क्या था वो? RAM and CPU. However, let's talk about this correlationship of a CPU and RAM. So I'm writing RAM. See, Britishers जो है ना वो RAM इस साइड में लिखेंगे और VGA इस साइड में लिखेंगे. नॉर्थ ब्रिज हमेशा बीच में रहेगा. अमेरिकन रहेंगे तो वो रैम को ये राइट हैंड पे लिखेंगे और VGA को लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे. अब क्या करने का, अपने लिए मुसीबत है ये. ओके, नाउ दिस इज योर साउथ ब्रिज एंड आई टोल्ड यू कि this particular communication is high speed, very high speed, and that is called FSB. And the communication that happens in between north bridge, south bridge, and the controllers. Okay, तो कंट्रोलर्स में क्या क्या है? निक है एंड हार्ड ड्राइव है. नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पे पैकेट्स चलता है और यहाँ पे क्या चलता है? ब्लॉक्स, isn't it? So always remember, whenever we are talking about writing data on hard drive, we are always talking about the blocks. And whenever we are talking about data on network, we are always talking about the bits, which goes in packets. Okay, we are never ever talking about blocks in the network. तो ये तुमको डिफरेंस हमेशा याद रखना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है. तो कभी मिस्टेक से सपोज मैंने ऐसा लिख दिया, तो यहाँ पे दोनों भी कैपिटल है, इधर भी और इधर भी, लेकिन क्योंकि इसका रेफरेंस नेटवर्क से है तो तुमको समझना है कि ये छोटा भी है. या हो सकता है ना, some people they make that mistake, but you should understand that as a technical guy कि this is a mistake. उसको बोलना नहीं है, बस याद रखना है कि हाँ it's related to this, it is supposed to be in bit and the speed, the size will differ. That difference is चलो एक एग्जांपल लेते हैं यार. तुम लोग ने कभी हार्ड ड्राइव खरीदा होगा, उस पर लिखा होता है 1 TB, लेकिन जैसे ही तुम इसको हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करते हो ना, तो जैसे ही कनेक्ट करते हो किसको, सी दिस इज व्हाट इज रिटन बाय द मैन्युफैक्चरर, है ना. तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? OEM. वो बोलता है 1 टेराबाइट का है, लेकिन जैसे ही तुमने कनेक्ट किया किसमें? कंप्यूटर से, तो वहां पे तुमको लिखा आएगा ऐसा कुछ, तो तुम परेशान हो जाते हो, अरे किधर गया यार, ये तो पूरा नहीं है यार 1 टेराबाइट. तो तुम पूछोगे ना, हाँ 31 है ना, ठीक है, मैंने ऐसे ही फेंक दिया क्योंकि कौन करते बैठेगा कैलकुलेट. बट इसका लॉजिक क्या है? 931, yes. What is the logic behind this? Why it is like this? There has to be some logic. तो अपने को तो झटका लगता है ना कि यार इतना कम कैसे हो गया 1 टेराबाइट.
supposed to be something like this. तो उसका आंसर, मैन्युफैक्चरर जब भी कैलकुलेट करता है, सो उसका जो कैलकुलेट होता है, कैलकुलेशन जो होता है, दैट इज 1 MB इज इक्वल टू 1000, एंड सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर जो होता है वो भी OEM होता है. से फॉर एग्जांपल तुम्हारे केस में माइक्रोसॉफ्ट, ये जब कैलकुलेट करता है 1024 कैलकुलेट करेगा. तो ये 24 जो है ना, ये कम होते होते तुमको ये फिगर मिलता है. एक्चुअल दोनों भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट. ये बोल रहा है कि मैंने तेरे को 1000 दिया था, इसने जब कैलकुलेट किया तो इसके हिसाब से इसको इतना ही मिला. सो आर बोथ करेक्ट? यस, बोथ आर करेक्ट. लेकिन जब तुम सॉफ्टवेयर में आओगे तो तुमको ये ही करेक्ट मानना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट अ हार्डवेयर इंजीनियर, यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो यू विल ऑलवेज गो बाय दिस, यू विल नेवर गो बाय दिस. तुम इससे गए कि तुम मरे, फंसे. हाँ, ये पॉइंट याद रखना है. तो ऐसी कुछ चीजें होती है जो बेसिक लगती बेसिक है, लेकिन हमारे लिए डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे ये काम आती है. योर डॉक्यूमेंटेशन, एंड सम पीपल दे वंडर व्हाई इट इज लाइक दिस. सो द आंसर इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज देयर कैलकुलेशन is different. Okay, they want to round it off, so make it easy, to make their life easy, and we don't want to round it off because we know how computations work, है ना. तो तुमको अगर चाहिए तो तुम यहाँ से ऐसा स्टार्ट कर सकते हो. वो जो पावर ऑफ 2 जो है ना, वो तुम यहाँ से स्टार्ट करते हो. बाइनरी है ना, 0s and 1, रिमेंबर. उसके बाद तुम कहाँ जाओगे? 2 पे जाओगे, फिर कहाँ जाओगे? 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर. तो ये एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है तुमको, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ दिस पावर इज कैलकुलेटेड. एंड देन नाउ यू नो कि सीपीयू जो है ना, यहाँ से रैम तक जो इंफॉर्मेशन जाती है और रैम से सीपीयू तक जाती है, वो FSB बोला जाता है, फ्रंट साइड बस. ओके, सो लेट्स टेक योर टेस्ट. ओके, I have a CPU with 2 gigahertz. So I am talking about what? I am talking about the power of the CPU. Okay, so when I say my CPU has 4 cores, you tell me, what am I talking about? See, computational power is this. This is the strength. वो एग्जाम्पल के साथ में ट्रक होता है ना, ट्रक वो कितना लोड ले सकता है ना, लेकिन वो स्पीड दिखा सकता है क्या? स्पीड में जा सकता है? नहीं. So in other words, this is related to speed, and this is related to how much load it can take. 4 कोर है तो 4 कोर का ही लोड लेगा ना भैया, 4 टायर है, बस हो गया इतना. कितना लोड ले सकता है वो? इसका है ना, लोड से कोई लेना देना नहीं है, स्पीड से लेना देना है, कितना जल्दी कर सकता है. तो इसका इन अदर वर्ड्स टाइम फैक्टर इधर गया ना, टाइम प्लस स्पीड. नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, तुमने एक सीपीयू लिया जिसका 2 गीगाहर्ट्ज का पावर है, 4 कोर है, एग्जाम्पल, and you have 16 GB of RAM. You tell me, what will be the FSB? तो उसके लिए क्वेश्चन तुमको पूछना पड़ेगा ना कि तुम्हारा जो चिपसेट है, दिस इज योर चिपसेट, what is the speed of your chipset? That's a good question which nobody ever ask. हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स को इसका ध्यान रखना पड़ता है. तो उसका जवाब ये है कि that is 2000 megahertz.
अब तुमको पता चला कि अरे भैया सीपीयू का तो स्पीड होता ही है, रैम का भी स्पीड होता है, लेकिन यहाँ पे चिपसेट का भी स्पीड है. दैट इज व्हाट इट इज. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अस देन एनीथिंग एल्स. तो यहाँ पे जब मैंने लिखा ना 16 GB ऑफ रैम बराबर है, तो व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द साइज. डिड आई टॉक अबाउट द स्पीड? नो. दैट मीन्स वो इतना लोड ले सकता है. So what about the speed? What is the deciding factor of the speed? So तुम बोलोगे that is the refresh rate. Whether it is DDR1, 2, 3 or 4, that will decide. So say for example, my speed, my RAM का जो speed है, that is 2400 megahertz. अब तुमको रैम का स्पीड भी मिल गया, चिपसेट का भी स्पीड मिल गया और सीपीयू का भी स्पीड मिल गया. तीनों को मिलाने के बाद व्हाट विल बी द एफएसबी? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू. जो लोग कभी कंप्यूटर गेम खेलते हैं ना, तो वो लोग इसको ओवरक्लॉकिंग करना पड़ता है. So this knowledge is important. Nowadays motherboards they have auto overclocking calculations. लेकिन हमारे जमाने में हमको क्या बैठ के कैलकुलेट करना पड़ता था और 3 से 4 बार मशीन रीस्टार्ट होता था, मतलब हमको मदरबोर्ड रीसेट करना पड़ता था, उसके बाद जाके हमको एक एफएसबी सेट करना पड़ता था. तुम्हारे जमाने में ये सब आसान है, बटन दबाया काम खत्म. Whichever is not compatible, it will tell you it is not compatible. So see, someone is telling, oh, 2000. You tell me, Shubham, why you are saying 2000? वैभव ने भी 2000 बोला है. Why? You cannot go above your chipset. If that is your logic, I agree with you. भाई चिपसेट तेरा 2000 का स्पीड का है तो तू उसके ऊपर जा ही नहीं सकता, कुछ भी कर ले. कोई बोलेगा नहीं मैंने ना 3 गीगाहर्ट्ज का सीपीयू लिया था, 3 गीगाहर्ट्ज, तो उसको क्या लग रहा है 3 गीगाहर्ट्ज की स्पीड से भागेगा वो? नहीं रे मेरे भाई, वो तेरा स्पीड इधर बॉटल नेक है. दिस इज नोन एज बॉटल नेक. सपोज योर स्पीड इज, रैम का स्पीड इज व्हाट 2400, this is 3 gigahertz and this your chipset is 4000. अभी मैंने इसको क्या किया 4000 कर दिया. So what will be the speed of your machine? 2400, क्योंकि ये बॉटल नेक है. अभी आ रहा है ना लॉजिक समझ में? तो ये कंपैटिबिलिटी होना चाहिए कि नहीं? यस. तो कितना ज्यादा अच्छा सीपीयू लेके कुछ फायदा नहीं है दोस्त. हाँ, वो F1 कार लिया, किधर बोला मैं पूना हाईवे पे चलाएंगा, 1000 रुपया फाइन भरेगा लेकिन मैं चलाएंगा. क्या फायदे का? तेरा F1 चलने वाला नहीं उधर, क्योंकि उसके लिए अलग रोड लगता है दोस्त, उसके लिए अलग चिपसेट लगता है. यस. तो अब ये थोड़ा सा हेक्टिक लगा कि नहीं, मगजमारी लगी कि नहीं लगी? तो करना क्या है? से थैंक यू टू क्लाउड कंपनीज. They have done all that work for you. They are not asking you to do anything. They are asking you to take the machine and use it. कंपनी तुमको क्या बोलेगी? कौन सा मशीन लेना चाहिए? अब तुम वो टाइम पे सर नहीं खुजा सकते. क्लस्टर प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग के टाइम पे यू कांट डू दैट. यू हैव टू टेल देम वी विल टेक H टाइप, वी विल टेक ब्ला ब्ला टाइप, वी विल टेक ब्ला ब्ला टाइप. तो लोग पूछेंगे व्हाई, तो तुम बोलोगे या बिकॉज वी विल गेट अ वेरी गुड एफएसपी. वो उधर ही चुप हो जाएंगे, बोले जान दे भाई, आगे नहीं बढ़ने का, इससे आगे बढ़े तो ये अपना भेजा उबाल डालेगा. भले तुमको कुछ नहीं आता, दे ओनली गेट स्केर्ड विद द वर्ड्स लाइक दिस. आया लॉजिक समझ में? तो फ्रंट साइड बस, व्हाई वी कॉल इट अ फ्रंट साइड बस? बिकॉज ऑल द डेटा इज ट्रैवलिंग फ्रॉम दीज 3 components, isn't it? So when they are traveling like this, they are giving you a front side bus. When they are traveling, ये नीचे का है ना बैक साइड बस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ फायदे का नहीं हो, हमारे लिए कुछ काम का नहीं हो.
honestly speaking. But this point is understood. So whenever I say CPU, what comes to your mind? CPU cycle. Whenever I say RAM, what comes to your mind? Refresh rate. Okay. So whenever I say network, what comes to your mind? Na bandwidth. याद रखना. Okay, bandwidth. And whenever I say hard drive, what comes to your mind? Storage, bandwidth. तुम्हारे दिमाग में आना, तुम्हारे पास जो आंसर है उसका ये होना चाहिए, IOPS, throughput, latency. Now the question is, भैया निक के टाइम पे बैंडविड्थ काफी था, रैम के टाइम पे रिफ्रेश रेट काफी था, सीपीयू के टाइम पे सीपीयू साइकिल काफी था, लेकिन हार्ड ड्राइव के टाइम पे ये तीन तीन का मुसीबत गले में आ गई. That is a good question to ask. In other words, somebody who says IOPS, throughput, latency, you can actually tell कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है. जैसे ही थ्रूपुट बोला, इसका मतलब मैग्नेटिक है. मतलब क्या है? मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव है. आईओप्स बोला, इसका मतलब ये हार्ड ड्राइव का जो लेना देना है वो नेटवर्क से लेना देना है. इट कैन बी पॉसिबली अ डैस विच इज डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज. लेटेंसी वर्ड यूज किया, मतलब ये होता है कि ये डेटाबेस का सिस्टम है. देखा, अभी डेटाबेस का सिस्टम है का मतलब क्या हुआ? It can be. See, we are talking about technology. DAS is direct attached storage. Okay. Even SAN. It can be even NAS. Network attached storage. क्योंकि ये लोग IOPS बोल रहे हैं. तो अगर तुम बोलोगे कि yes, IOPS is the latest and it is safe to remember IOPS. मैग्नेटिक थोड़ा पुराना है ना? टेप ड्राइव्स का भी, टेप ड्राइव भी बोल सकते हैं इसको तो. Isn't it? And when we are talking about database, that means इसका जो मदरबोर्ड है CPU, इसका जो रैम है वो, और इसकी जो हार्ड ड्राइव है, ये सब आपस में क्या है? एक साथ चिपके हुए. हाँ, that's what it means. So you can tell me कि थ्रूपुट के केस में भी तो चिपका हुआ है ना मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव. I will agree with you, yes. Then why do we call it a throughput? Because the hard drive that we are using here can be SSD. It can be any other technology. तो जैसे ही मैंने वर्ड सुना IOPS, मेरे दिमाग में आ गया कि yes, they are using all latest technologies. In other words, मेरा ये हार्ड ड्राइव का भरा हुआ बॉक्स है, इसमें बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स है, but I need a network to connect to this. Without this network, it is not possible. So ये नेटवर्क की जो स्पीड है, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, उसके ऊपर ये एक्सेस डिपेंड करता है. If I get better speed here, I can get better access. In this case, everything is dedicated. You have to get better access. You have to. However, you are using this on a network, like application इसको connect करता है ना database को. So in that case, इधर भी IOPS आ गया. So if I ask you, there is one word that you need to remember. Which one would you choose? Latency, throughput, or IOPS?
हो गया खत्म, सेशन खत्म हो गया, घर पे जाते हैं अभी अपन. You have to remember IOPS. ठीक है, that's how it works. तो CPU है, RAM है, NIC है, हार्ड ड्राइव है, लेकिन इसका सब कुछ, इसके पीछे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है जो हमको याद रखने की, सिर्फ उस पर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, बाकी सब छोड़ देने का. बिकॉज इट्स विल वेस्ट योर टाइम, है ना. आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम रीडिंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड लेटर ऑन रियलाइज काम की बात इतनी है, बस याद इतना ही रखना है. दैट्स इट. नाउ सपोज आई हैव अ नेटवर्क which is known as a lease line and a broad band. So what is the difference? भाई दोनों भी नेटवर्क टाइप है. तो लीज लाइन is called dedicated. Okay, it is also commercial. It is also expensive. Zero downtime, that is dedicated. Speed, you get speed over here. Yeah, सच में. This is shared. हाँ सच में, यहाँ पे स्पीड नहीं मिलती तुमको. लीज लाइंस में स्पीड इज अ बिग टाइम प्रॉब्लम. तुमको स्टेबिलिटी मिलेगी, स्पीड नहीं मिलेगी, बहुत एक्सपेंसिव होता है. दिस इज लो कॉस्ट. अब सपोज, हाँ, अनब्रेकेबल मतलब डेडिकेटेड. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल समझना पड़ेगा. यू यूज, ये एंटरप्राइज है ना, कमर्शियल लिखा ना ये, तो ये एंटरप्राइज हुआ. तो ये क्या है, कंज्यूमर के लिए. This is for consumer. If this is for enterprise, then this is for consumer. That's the difference. Big difference. So अभी तुमको work from home मिल गया. क्या मिला? Work from home. So when you get a work from home, you are sitting somewhere at home, isn't it? On your computer, on your personal computer. And your company will ask you to work in the data center. तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे ठीक है, मेरे को एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना पड़ेगा. तो तुम किसी कंपनी को कॉल करोगे, लाइक ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर, isn't it? प्रोवाइडर तुमसे कुछ पैसा लेगा और तुमको क्या देगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन देगा, जिसकी क्या प्रॉपर्टीज है, स्पीड, शेयर्ड, लो कॉस्ट एंड कंज्यूमर. तो इसमें से अभी हम लोग लो कॉस्ट और कंज्यूमर, ये दो चीज समझ में आएगा. सो फार शेयर्ड और स्पीड तुमको आज समझ में नहीं आएगा, वो नेटवर्किंग के सेशन में समझ में आएगा. what it actually means in reality. But for now, you have the connection which is at low cost and for consumer. तुम्हारे पास कोई लाइसेंस है क्या? नहीं है. तुम्हारे पास खाली आधार कार्ड दिया और ले लिया, मिल गया ब्रॉडबैंड. Are you connected now to the world? So the answer is yes. Then your company wants you to connect to the data center. तो तुम क्या करोगे, इस डेटा सेंटर को कनेक्ट करोगे, isn't it? But as you should know कि तुम्हारी जो डेटा सेंटर है ना, उसमें ब्रॉडबैंड नहीं है. What they use is called a lease line. So you're connecting from a broadband to a lease line connection. तो अब समझो एक 20 मिनट हो गए, 20 मिनट्स, और मेरा कनेक्शन टूट गया. तो मैं गाली किसको दूंगा, मेरे प्रोवाइडर को दूंगा कि मेरी कंपनी को दूंगा? ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर. Yeah, that's what it means. Why? Because
what you get in broadband is shared. It is not dedicated. And अभी जैसे ही कनेक्शन टूटा, तुमने इसको बोला कॉल करके, कॉस्ट इसके कस्टमर सपोर्ट को तुमने कॉल किया, है ना? यू कॉल द कॉन्टैक्ट सेंटर and you tell them, Casey, my connection is broken, and because of you, I have incurred a loss of $1 million. You have to pay me. तो ये लोग तुमको बोलेंगे, ये जो प्रोवाइडर है ना, ये बोलेगा, सर प्लीज रीड द टर्म्स एंड कंडीशन. You are using a consumer product. If you want an enterprise product, you will need to take our lease line connection. मतलब तेरे को फूटी कौड़ी मिलने वाली नहीं है शॉर्टकट में. तो यू विल से ओके ओके, ठीक है, फोन रखने के बाद गाली. ओके, नाउ यू गिव अ कॉल टू द लीज लाइन कनेक्शन, बिकॉज यहां पे तुमको क्या आया था? लेटेंसी. तुमने प्रूव किया मॉनिटरिंग टूल से कि सी माय कनेक्शन वाज ब्रोकन फॉर XYZ टाइम एंड दिस इज योर फॉल्ट. तो TCL में तुमने कॉल किया और उनको बोला, उन लोगों ने तुम्हारी बात एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि तुमने उसको मॉनिटरिंग टूल से प्रूव करके दिखाया कि देखो ये ऐसा, ये टाइम है, ये दैट इज इट. दे विल पे यू द पेनल्टी. वैसे वो लोग कभी ऐसा होने देते नहीं है, तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूँ. हाँ, पेनल्टी देंगे तो टकला हो जाएगा, उनके इतनी मिलियन कस्टमर्स है. दे मेक श्योर कि इट इज द लीज लाइन डेडिकेटेड कमर्शियल एंटरप्राइज ग्रेड कनेक्शन. अब मेरा क्वेश्चन है, तुमको मैंने एक एप्लीकेशन दिया, मतलब तू एक एप्लीकेशन होस्ट कर, ऐप. Which application is more reliable? The one which is hosted in the data center, the one which is hosted at home, in your on-prem data center. देखा तुमने, मिल गया ना जवाब. तो ये जो डिफरेंस है, ये तो बहुत दूर की बात है. हमको क्या करना पड़ेगा? इस कनेक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, आगे जाके. So we have to create the connection. We have to create our own private VPC. We have to take a VPN. And then through this, we have to connect your home. इसको टनलिंग बोला जाता है. क्या बोला जाता है? टनलिंग. वी हैव क्रिएटेड अ टनल. तो इसमें एक प्रोवाइडर है बीच में जो ब्रॉडबैंड है, ओके, एंड एक प्रोवाइडर है. दिस प्रोवाइडर कैन बी अ थर्ड पार्टी एंड अ फर्स्ट पार्टी, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी. तो ये कौन सा प्रोवाइडर है? सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है. And then you are connecting to the data center. So in the data center, you are connecting to your own private cloud, virtual private cloud that is created by you. अब इसमें बहुत सारी चीज है बीच में जो हमने छोड़ दिया है. यहाँ पे है ना DNS है, यहाँ पे भी DNS है, यहाँ पे भी DNS है, फायरवॉल है, DHCP है, बहुत कुछ है. ये कल हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि ये सब भला क्या चीज होती है. ओके, how does this work? We are not going to jump directly on VPC. You can't jump on VPC tomorrow. पहले तो तुमको बेसिक्स नेटवर्किंग का पता होना चाहिए, IPv4 इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एंड देन वी कैन गो टू ऑल दीज कंपोनेंट्स. क्योंकि तुम जब जॉब मिलेगा तुमको, तो तुम्हारा इसी तरीके से एक कंप्यूटर यहाँ होगा, तुम्हारा वर्क स्पेस यहाँ होगा,
तुम्हारा क्लस्टर यहाँ होगा, isn't it? And you are connecting from home to your workspace, and from your workspace you're connecting to your cluster. So practically we have to do that. And in the cluster you have a gateway. You also have a gateway here. You also have a gateway here. So भेजा तो उबलने वाला है उन लोगों का जो प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते. And they will enjoy. Welcome to information technology. Okay, now we'll take one example of, पहले scenario तुमको बताता हूँ. Scenario is you are supposed to bring data from a tape drive जहाँ पे टारबॉल रखे हुए, ठीक है ना. टार मतलब टेप ड्राइव आर्काइवल्स. सो नो नथिंग टू वरी, इट्स अ फॉर्मेट. लेकिन जैसे डॉट टार होता है ना, एक फाइल का नाम है, और इसका जो साइज है वो है 96 टेराबाइट्स. माई क्वेश्चन टू यू इज, कंपनी ने तुमको काम दिया है कि टेप ड्राइव से तुमको डेटा लेना है और कहाँ डालना है, from this data center to this data center, which is bare metal to cloud. Okay, तो मेरा क्वेश्चन ये है, दोनों के पास लीज लाइन है या नहीं है? सो द आंसर इज यस. तो तुम्हारा लीज लाइन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मच टाइम will it take for 96 terabytes to move from your tape drive to your cloud? हाँ, तो it depends on the bandwidth. Very nice. तो हम लोग क्या करेंगे? Oh, फिर ये सताने वाला है because as I told you, bandwidth calculator, देखते कौन सा आता है. कभी कभी बहुत सड़े हुए कैलकुलेटर आ जाते हैं, देखा. इंपॉर्टेंट ये कैलकुलेटर नहीं है. हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट प्रोसेस? तो इंटरव्यू जो लेता है ना, उसका इंटरेस्ट इस चीज में होता है. अभी हम लोग जो देखने वाले हैं ना, आई थिंक, लेट मी राइट, iBeast, this is the one. Okay, terabytes 96 according to the challenge. So the question is, what is the bandwidth? So who will tell me what is the bandwidth? How will I come to know the bandwidth in first place? What bandwidth? How will I come to know? Question समझ में आया? ये कैसे पता चलेगा क्या bandwidth है, कितना bandwidth है? तो say for example, मेरी कंपनी में उन लोगों के पास गीगाबिट्स में है 5 गीगाबिट्स. So 1 day and 18 hours. यहाँ दिख रहा है. और अगर वो टेराबिट्स में है तो 2 मिनट, 2 मिनट्स. लेकिन क्वेश्चन ये है कि तुम जब काम करोगे, जॉब करोगे, तुमको तो मुश्किल से ये वाला स्पीड मिलने वाला है. तो तुम क्या बोलोगे मैनेजमेंट को? इट विल टेक 1777 days. भाई तुम्हारी एक्चुअल स्पीड तो ये रहती है ना 5
बहुत अगर हुई तो, बिकॉज इट इज लीज लाइन, रिमेंबर दिस। तो क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोसेस है उसका। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको समझ लेते क्विकली। सी व्हेन यू गेट सच अ टिकट, तो उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है। यू विल फर्स्ट स्पीक टू द नेटवर्क टीम। तो नेटवर्क टीम ऐसा तो है नहीं कि तुमने बोला और उन लोगों ने माना, कभी नहीं मानेंगे वो, नेवर। सो हमको क्या करना पड़ता है, सीसी में डायरेक्टर को रखना पड़ता है। वी टेल द डायरेक्टर, मतलब सीसी में रखते हैं उसको, डायरेक्टर को पहले बात कर लेते हैं कि मैंने नेटवर्क टीम को टिकट रेज कर रहा हूँ। टिकट का टू ओपन द बैंडविड्थ। नाउ द क्वेश्चन इज, do you think you will raise a ticket and they will open the bandwidth? So no, it will not. What they will do is they will speak to TCL. TCL कौन है, हमारा प्रोवाइडर, इंडिया का प्रोवाइडर। इनसे वो लोग बात करेंगे, बोलेंगे सी वी आर लुकिंग टू मूव 96 टेराबाइट्स ऑफ डेटा, okay, from bare metal to the cloud environment, from blah 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 to blah blah blah. वो उनका काम है, they will talk to them, अपना प्रॉब्लम नहीं है। So we need your help. तो ये बताएगा, क्या बताएगा, चार्जेस। ये बोलेगा देख तेरे को इतना खर्चा आएगा और तेरी बैंडविड्थ में से इतनी बैंडविड्थ हम लोग, वो business will be on as usual. The only thing is you have to pay XYZ amount of charges. And the condition, charge के बाद क्या है, condition, रात को 4 बजे 4 AM you can do this. कभी 3 बजे, कभी 2 बजे, depends. We will open the bandwidth and then you can do it. तो हमने क्या देखा, चार्जेस देखा, और क्वेश्चन ये है कि इसका पैसा भरेगा कौन, नेटवर्क टीम भरेगी कि जिसने टिकट रेज किया है उसका प्रोजेक्ट भरेगा। सो द आंसर इज दिस प्रोजेक्ट विल पे द मनी। नेटवर्क टीम क्या करेगा, तुमको खाली बिल भेजेगा, बस बोलेगा यार तेरा बिल है भर दे, तूने बोला था ये बैंडविड्थ खोल, मैंने खुलवा दिया, तेरा काम हो गया, मैंने फायरवॉल भी खोल दिया तेरे लिए। So the network is open, firewall is open. Now you are done. You can move the data as you like. तो अब उन लोगों ने सपोज हमको जो बैंडविड्थ का जो बिल भेजा ना, तो उन लोगों ने बोला कि इफ यू आर मूविंग इन टेराबिट्स पर सेकेंड तो 2 मिनट लगेगा, बट 1 टेराबिट्स पर सेकेंड कितना लगेगा, 12 मिनट। लेकिन उसका खर्चा कितना है, तो हम बोलेंगे भाई हमको इतना खर्चा देने का नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आया कि नहीं आया अभी तक, भैया तुमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या तुम्हारे पास टेराबिट सपोर्ट करने वाला, तुम्हारे पास तो जीबी के ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, गीगाबिट सपोर्ट करता है तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यू आर लिमिटेड ऑलरेडी टू द gigabit infrastructure. So say for example, if I have 1,000 gigabit infrastructure, okay, how much time will it take? तो उसका आंसर तुम्हारे सामने है। So if I make it 100, 2 hours. So majority जो है ना, majority they will use this 100 gigabit per second. Okay, तो ये क्या होगा, टाइम कितना लगेगा, 2 घंटा। तो जो नए नए बंदे होते हैं वो बेचारे 4 बजे सुबह में, 3 बजे नहीं बल्कि उनको रात को नींद ही नहीं आती, वो जागते रहते, आज यार डेटा जाने वाला, मैं बैठ के देखने का मेरे को। ये लीज लाइन है रे, तेरा ब्रॉडबैंड नहीं है जो कनेक्शन टूटेगा। You just create a cron job and leave it, and at night it happens automatically. You just see in the morning that it is done. You receive a mail, तेरा काम हो गया दोस्त,
enjoy. तो तुमको याद क्या रखना है? तुम जब आगे जाके बोलोगे ये सारी बातें, तो तुमको याद ये रखना है, क्योंकि मैं ये वापस से रिपीट नहीं करने वाला हूँ, याद ये रखना है कि see our infrastructure supported only 100 gigabit bandwidth per second, and we could not go above that. That's the reason we chose that, and the bill was also quite low on that. So it took somewhere around 2 hours. तो तुम्हारा यूज केस में 96 टेराबाइट बताओगे कि क्या बताओगे, आई डोंट केयर, दैट यू डिसाइड. तो कैलकुलेटर तुम्हारी मदद करने के लिए है कि नहीं? Definitely. So you will say it took around 2 hours, 8 minutes. And because it was a lease line and there was no workload ever, and it happened exactly at that time. तो ये बात तुमको क्या करना है, बैंडविड्थ वाली बात तुमको समझाने के लिए मैंने ये एक सिनारियो तुमको बताया एक शॉर्टकट में. लेकिन कल हमको नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा. व्हाट इज अ नेटवर्क इन शॉर्ट, व्हाट इज अ स्विच, अ राउटर, अ गेटवे, what is a hub, and blah blah blah, all that tomorrow we will do it. Okay, so it's already 5:42. For today it's more than enough. However, there is something that is remaining, and that is storage optimized, isn't it? This we will cover in the cloud session. अभी तुमको क्या याद रखना है स्टोरेज से रिलेटेड? IOPS 100 gigabit. yes, देखो कुछ कंपनीज में ना ये होता है यार, बहुत कम कंपनीज में होता है. लेट मी टेल यू, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कंपनीज में होता है, बट क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास कुछ सॉल्यूशंस है. डायरेक्ट कनेक्ट, स्नोबॉल, स्नोमोबाइल, दैट वी विल डिस्कस इन द क्लाउड सेशंस. यू डोंट वरी अबाउट दैट फॉर नाउ. ठीक है, बाद में तुमको डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, बहुत सारे डॉट्स है दैट यू हैव टू कनेक्ट. बट फॉर नाउ बैंडविड्थ कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ में आया. द मोमेंट यू चेंज द बैंडविड्थ, सी what happens, your time changes. 88 days. So always remember, ठीक है ना. So if I say 1 GB PS only 8 days, तो many a times हमने ऐसा नोटिस किया है, कंपनीज में ऐसा होता है कि बेचारे डेवलपर्स को लोग प्रोजेक्ट दे देते हैं, बोलते डेटा मूव कर ले, और वो ऐसा बैठे रहते हैं, 8-8 दिन तक बैठे रहते हैं. सच में बैठे रहते हैं ये 1 GB PS के ऊपर, क्योंकि उनको प्रोसेस पता नहीं होता. दे आर नॉट द एडमिनिस्ट्रेटर्स, दे डोंट नो कि दे आर सपोज टू स्पीक टू द नेटवर्किंग टीम एंड गेट द जॉब डन. सो दे जस्ट ब्रेक द डेटा इनटू पीसेस एंड दे मूव एवरी नाइट. 6-6 घंटा वो लोग मूव करने को बैठे. हेल हमाली बोलते हैं हम लोग इसको. नॉट सपोज टू डू दैट. सो नॉलेज कब काम आएगा? दैट्स हाउ इट वर्क्स. ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है. विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू टुमारो. टेक केयर.